LNM-IIT का नाम सुनते हैं तो उसमें रहता है कि भाई कोडिंग कल्चर तो शानदार है और जी सॉकर्स बहुत सारे हैं यार इस कॉलेज में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हम आज क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, ठीक है, जी सॉक है, ओपन सोर्स है, स्टाइपेंड इतना कूल है यार, मतलब मजा आ जाता है स्टाइपेंड सुन के। बट द थिंग इज दैट कि हम स्टार्ट कैसे करें, ओपन सोर्स होता क्या है, कमिट कैसे करते हैं, गिटहब क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो जाते हैं। तो यार आज हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एंड द डिफरेंट थिंग अबाउट दिस सेशन इज कि ये इंटरैक्टिव सेशन है, ठीक है। यू हैव टू राइट योर क्वेरी इन द चैट और जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ, ठीक है। If you feel that this is the right moment to ask the question, Vishal sir has stopped for some thing to explain, you can just ask your question there, okay? So try to be interactive, and without further ado, first we'll see about the video that one of our core members has made, and then we'll start with the flow of this particular session, okay? So यार एक बार comment section में, chat section में लिख दो that you are excited, and then we'll start, right? बाकी जब तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हो यार, वी कैन एड्रेस दैट इन द सेशन, ठीक है। ओपन सोर्स के रिगार्डिंग या व्हाट इज जीडीएससी, ये वाला भी बहुत लोगों को डाउट होगा। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट दैट कि जीडीएससी करता क्या है ना। कि मतलब अपन ने सबने इंस्टाग्राम पेज तो देख ही लिया होगा, तो यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलरली, राइट? Okay, so we have someone from Y21 here also. Am I right? Yash Bhaktar. Okay. So Yash, first of all, you should choose a domain. So you should work on. We will also have some sessions regarding different domain. We are also thinking on introducing game development. It's a new domain for our college, and we also have competitive data science, WebD. So in GStock, you have to choose a domain at that point. So when we have those sessions, you can first choose a domain, build the basic for that domain, and then you can think about cracking the GSOC. We also have in our batch Karthik, Chirag. Yes, he cracked it in He first cracked year. in the first year. So we will also introduce him in this meet. Yes. So So that cracked the GSOC in first year only, the one only guy. So if you are thinking that only second year, third year students can crack, no, it's not a bandwidth or it's not a any yes, restrictions any for. yes, sir. There is no restriction. Just Excuse what me. matters is your experience and field, right? Okay. Any, So without further ado, let's get started with the session. So Jatin, you can just maximize the screen and play the starting video. So as you see, a lot of domains are there in GDSC Club, and GDSC LNM IIT will have to explore more than that. We are introducing new things to our club, right? तो यार ये तो था GDSC का. Now let's get started with the main session, that is roadmap to open source. So बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है यार. So I will request Mishal sir to just present your screen and get started with the session. And any doubts if you are having here, you can just interact in chat section, and we will just actively answer them. Okay, so you can just present your screen, Mishal. So yeah, thanks Chirag for having me. And hello Y20. This is the first event of GDSC. I think it would be more interactive and very helpful for you. You would be liking it. And मैं इसको ज़्यादा बोरिंग नहीं रखूंगा, ठीक है। जितना ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बता पाऊँ वो ज़्यादा मैं करूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ पहले। दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू एड्रेस एज वेल। यार ये सेशन को मतलब इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है। तो चैट सेक्शन पे एक्टिव रखना, ओके, एंड वी विल फॉर श्योर आंसर योर ऑल द क्वेरीज दैट यू आर हैविंग, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लेना, राइट? So guys, you can see my screen. Okay.
कोई हाँ, ये मतलब सही बीच है। में ना मतलब बता देना ऐसे माइक ऑन करके, है ना, इंटरेक्टिव रखना, क्योंकि मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूँ, सो आई वोंट बी एबल टू सी द चैट सेक्शन। Hand लास्ट में raise, अपन एक, please use the hand raise option. Okay, now I'm going on mute. या Okay, Mishal, you can continue. thanks, Neil. So let's start the session. So I think many of may be knowing me, but some of you may don't. So I was a Google Summer of Code 2021 student with Cross Organization, which is a part of University of California, Santa Cruz. And at last of this session, we are having our bonus members, like we are having Karthik and Apurv. So Karthik basically was also a student in GSOC 2020, and he was a mentor in 2021 GSOC. And Apurv was also a fellow GSOCer. They both are my fellow batchmates. So we all three would be answering your queries at the end of this session. So first I would discuss like कि अपना flow of session क्या रहने वाला है, okay? तो मैं इसको सेशन को छोड़ रहा हूँ, थोड़ा स्क्रैच से रखूंगा, है ना, जिससे सबको है ना ये पूरा कवर हो जाए। ठीक है, मैं पहले ओपन सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर मैं जीसॉक के बारे में बताऊंगा, है ना, फिर मैं अपनी जर्नी और एक्सपीरियंस बताऊंगा, देन व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज मोर इन ओपन सोर्स, व्हाट आर मोर प्रोग्राम्स, एंड लाइक आपको कैसे बिगिन करना चाहिए ओपन सोर्स के लिए, है ना। एक सेशन रखा है छोटा सा गिटहब के लिए जो मैं आपका, है ना, और फिर आखिरी में Q&A है। तो यार बेसिकली अगर मैं ना ओपन सोर्स की बात करूं, ये सब मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग हैं ना ये सारे एप्लीकेशंस जानते होंगे, लाइक एंड्रॉइड इज अ ओएस व्हिच एवरीवन यूजेस, है ना। ये सब क्या है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब जिसका कोड आपको फ्रीली एक्सेसिबल है, कोई भी यूज कर सकता है। देयर आर सम लाइसेंसेस व्हिच आर डेडिकेटेड टू सम सॉफ्टवेयर, बट मेनली लाइक वीएलसी है। वीएलसी का आप गिटहब पे जाओगे, ठीक है, गिटहब एक क्या है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम है ना, वेबसाइट है जो जिसपे उसका सारा कोड है। तो वीएलसी पे आप देख सकोगे उसका पूरे जितने भी फीचर्स हैं या जितना कोड बेस है सारा बिल्कुल स्क्रैच से गिटहब पे फ्रीली अवेलेबल है। मतलब कोई भी डेवलपर उसको जाके फैच कर सकता है, समझ सकता है और उसमें इंप्लीमेंट कर सकता है, मतलब कंट्रीब्यूट कर सकता है ना। विकिपीडिया हम लोग है ना स्टूडेंट लाइफ में बहुत यूज करा है प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। मोजिला फायरफॉक्स और लिनक्स जो हमारा ओएस है वो भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे बेस्ड है। तो ये मतलब कुछ बहुत कॉमन एग्जांपल्स हो गए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के, है ना। तो वही ओपन सोर्स में डिस्कशन कर रहा था, मैंने आपको बताया था कि जो भी कोड फ्रीली एक्सेसिबल हो, हर कोई यूज कर पाए, है ना, एवरीथिंग इज फ्रीली एक्सेसिबल। देयर आर मेनी सेशंस ऑफ ओपन सोर्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब, है ना। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो अपने क्या है मंथली, है ना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहती है तो वो अपने सेशंस कराती है मंथली, जिसमें वो ये बेसिकली ये डिसाइड करते हैं कि हमें अब आगे क्या करना है, फीचर्स क्या है, हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसमें बेसिकली इश्यूज क्या आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें रहती हैं डिस्कशन की, है ना। तो यार मैं ना एक काम करता हूँ, ज्यादा उसमें नहीं जाता वर्ड्स पे। मेन चीज है कि सारे लोग है ना मतलब जीसॉक के लिए इंटरेस्टेड हैं, सो आई वुड बी शेयरिंग माय एक्सपीरियंस, ठीक है। तो बेसिकली हर बंदे के दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि यार हाउ आर स्टार्टेड, है ना, क्या चीज करनी चाहिए एप्लीकेशन पीरियड, है ना। एप्लीकेशन बेसिकली जिसमें आपको एक प्रपोजल सबमिट करना पड़ता है, तो मेन वही है प्रपोजल सबमिशन, उसी के बाद होता है। तो प्रपोजल सबमिशन पहले आपके दिमाग में क्या थॉट्स आने चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, है ना। और सबसे मेन ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे केस में जो था, है ना। तो एक काम करता हूँ मैं आपको सबसे पहले ना जीसॉक की साइट पे ले चलता हूँ। तो यार देखो जीसॉक की जैसे ये साइट है, अभी तो क्या है आर्काइव में है सारे प्रोजेक्ट्स। आर्काइव मतलब है ना कि अभी तो क्या है ये एक्टिव नहीं है साइट, ठीक है। आई गेस है ना 2022 के मार्च में है ना और फरवरी में ये साइट एक्टिव हो जाएगी। तो अभी सारे जिसमें जो भी प्रोजेक्ट्स हैं पास्ट ईयर के सब इसमें आर्काइव प्रोजेक्ट्स में डले हैं, है ना। तो एक बार मैं बता दे रहा, देखो ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो किसी में काम कर रहा है, बट वो एज अ फ्रीलांसर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कंट्रीब्यूट करता है। तो बहुत सारी क्या है ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बनी है, और मतलब ये पूरा ग्लोबली कोई भी किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो सबसे मेन क्या है, जैसे आपको है ना शुरू करना है जीसॉक से, ठीक है। बेसिकली आपको अपने स्किल्स से ही सर्च करनी है ऑर्गेनाइजेशन। You have to select your organization based on your skills which you know before the application period. I guess like if I say मैं ना कहता हूँ कि बहुत सारे लोग अपने यहाँ वेब डेवलपर्स हैं, है ना, जावास्क्रिप्ट है ना वो यूज करते हैं। तो जैसे ना ये है एक ऑर्गेनाइजेशन है शाखा प्लेयर, है ना। तो आपको है ना जो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करनी है सबसे पहले टेक्नोलॉजीज पे जाना है कि हमें क्या टेक्नोलॉजीज आती है ना।
तो एक बार अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डिस्कस करके बता दे रहा, क्योंकि मैं उसमें मतलब मुझे ज्यादा चीजें पता है ना। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी क्रॉस। तो मैंने कैसे शुरू करा था, मैं जैसे इस पे गया था, मैंने सबसे पहले 3 ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करी थी, है ना, बेस्ड ऑन माय स्किल्स विच आई नो। ओके, सो लाइक मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का था, तो मुझे थोड़ा डेटाबेस और स्टोरेज के सिस्टम में एक्सपीरियंस था, है ना, हार्डवेयर का भी था ही, और C++ आती है ना। जो चीजें मेरे को सीखनी पड़ी थी बिफोर द एप्लीकेशन पीरियड, लाइक व्हाट आर दे, तो वो थी एरो और शेफ। ठीक है, शेफ है ना एक मेरा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब स्टोरेज सिस्टम है, जिसको मतलब है ना अपन एपीआई मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, तो मुझे भी ये पहले नहीं पता था, लेकिन मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन पहले सिलेक्ट करके इस टॉपिक को पूरा पढ़ा। ठीक है, तो जैसे ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है ना, अब मैंने है ना अपने स्किल्स के बेसिस पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन चैनल कर ली। सेकंड स्टेप क्या होता है आपका, ठीक है, सेकंड स्टेप सबसे मेन ये है, सबसे जल्दी उसका आईआरसी चैनल। आईआरसी चैनल मतलब जहां आपकी पूरी कम्युनिटी एक दूसरे से बात कर रही है, वो ज्वाइन करो। तो मेरे केस में इन्होंने गिटर यूज करा था और स्लैक, है ना। तो यहाँ लोगों ने क्या है, आप मतलब इसमें वही अपना आईडी बना के सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो, और बेसिकली ये देखना रहता है आपको कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी एक्टिव है ना, चैट सेक्शंस में। तो सबसे मेन ये है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो कम्युनिटी चैनल्स हैं उसको ज्वाइन करो अर्ली, सबसे अर्ली। ठीक है, एक बार मैं टाइमलाइन और बता दूं जिससे थोड़ा क्लियर हो जाए इसमें क्या हो। आई गेस ये 2020 का है। ओके, एक सेकंड, 2021 का मैं लेटेस्ट बता दे रहा। हाँ ये रहा। तो देखो, तो सबसे पहले क्या है, ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट होती है। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर है ना मेंटर रहते हैं, जो है ना उनकी है ना टीम को, और मैनेजर रहते हैं और मेंटेनर्स रहते हैं, जो पूरे क्या है प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप सबको है ना मतलब है ना स्टार्ट कर देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन देखना फरवरी से। मतलब ये सबसे सही मंत्र रहता है, क्योंकि सारी ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम बहुत एक्टिव रह जाती हैं, क्योंकि उनको प्रपोजल, ऑर्गेनाइजेशन को भी पहले गूगल को एक प्रपोजल सबमिट करना पड़ता है। तो आप सबको फरवरी के टाइम एक्टिव हो जाना चाहिए, है ना। फेब्रवरी से एक्टिव हो जाएंगे, और मेरे हिसाब से आपको मार्च तक उनका जो कम्युनिटी चैनल है ना वो ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा स्टेप क्या है, जब आपने कम्युनिटी चैनल ज्वाइन कर लिया है, उसके बाद ना आप है ना उनके बहुत सारी लिंक्स देते हैं, वो बहुत सारी चीजें रहती हैं। सबसे पहले मतलब आप यही जानो कि पहले उन सॉफ्टवेयर क्या है। तो जैसे मैं अपने केस का बता दे रहा, जैसे ये है, तो मैं है ना उनके किस पे गया था, आइडियाज लिस्ट पे। यहाँ सारे प्रोजेक्ट्स डले रहते हैं, मतलब ये पिछले साल के, ये मतलब हाँ 2021 अभी ये करंट ईयर है। तो ये सारे जैसे जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने अपने सारे प्रोजेक्ट आइडियाज यहाँ डाल रखे हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये अलग अलग टॉपिक्स पे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स निकलती है, तो में से भी वो सिलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सा लेना है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये मेंटर पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेंटर भी एक प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट होता है ना। तो जैसे ये थे, और मेरी जैसे जो स्किल थी मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। आई वाज लास्ट में था यार। हाँ, मेरा स्काईहुक डीएम के अंदर आया था, है ना। तो ये स्काईहुक एक उनका प्रोजेक्ट चल रहा था पहले से ही, ये करीब है ना 2 साल पहले से चल रहा है। तो ऐसा नहीं है आपको वो नया प्रोजेक्ट दे देंगे एकदम से। उस सारे प्रोजेक्ट की जो भी पूरा कोड बेस है, सब कुछ है, वो बहुत पहले से अवेलेबल रहेगा। आपका मेन काम ये है कि उस प्रोजेक्ट को हम खुद से समझे, सबसे मेन काम, कि कितना समझ पाए। ठीक है, उसके बाद अगर जैसे कुछ चीजें समझ में नहीं आती, तो उनके जो कम्युनिटी चैनल को हम ज्वाइन करते हैं, तो उनमें मतलब हम खुद है ना सेल्फ पिच करेंगे ना, कि सर लाइक आई एम हैविंग अ डाउट ऑन दिस, लाइक आई एम इंस्टॉलिंग दिस बट देयर सम काइंड ऑफ एरर। तो कम्युनिटी में क्या है, बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, तो कम्युनिटी जो इनिशिएटिव रहता है वो बहुत हेल्पफुल रहता है। सो दे वुड आल्सो बी हेल्पिंग यू टू हाउ टू अंडरस्टैंड द कोड बेस ऑफ ओवरऑल ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो मेरा ये था, है ना, HDF5 पे बेस्ड था मेरा। तो जैसे इन्होंने अभी तो इस पे लिंक डाल रखी है, मैं आपको जैसे एक बता दे रहा। मतलब ये पूरा हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग सिस्टम रहता है, तो मेरे में ऑर्गेनाइजेशन का खुद का एक आईओ पेज था, सारी लिंक्स यही है। तो एक सेकंड आप ये देख सकते हो। Mishal, Akshat Upadhyay is having doubt that when you started contributing in open source, what was the timeline like in January or So something? to elaborate on it, did you like select this organization after they released the list of organizations and then you started contributing, or did you start before that only? See, the thing is that like organizations basically they got selected in March, I guess. Okay, deadline. लेकिन उससे पहले आपको ये गैम्बल करना पड़ता है, मतलब बेसिकली 3 या 4, 4 से ज्यादा तो बिल्कुल ही मत करना सिलेक्ट।
बेस्ड ऑन योर स्किल्स यू हैव टू सिलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये कैसे सिलेक्ट करोगे? पास्ट ईयर में क्या है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन रिपीट होती हैं, जैसे कि क्रॉस हो गई है ना, फोसेशिया जो बहुत मतलब पॉपुलर है ना, आर्डू पायलट हो गई, ये सब मतलब बहुत कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है, हर साल आती हैं। तो आपको स्किल के बेसिस पे आपको सबसे पहले मतलब ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के सिलेक्ट होने से पहले फरवरी या जनवरी के आसपास। ओके, एंड कंट्रीब्यूट फिर जब वो पता चल जाए कि आ रही है तब, या उससे पहले से ही करना चालू करते हैं उनकी गिटहब में? देखो कंट्रीब्यूशन का ये है, तो मैं ना क्या कहते हैं, मेन ये है एप्लीकेशन पीरियड से पहले तुमने जितना कंट्रीब्यूट करा होगा ना, मतलब तुम्हारा जो फाइनल प्रपोजल होगा या ऑर्गेनाइजेशन जब सिलेक्ट हो जाती है, खासकर उस टाइम वो बहुत एक्टिव रहती है, तो उसके पहले तुमने अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन कराया होगा ना, तो इट मैटर्स अ लॉट। मतलब Okay. प्रपोजल में वो ये नहीं देखते कि तुमने कितना लेंदी प्रपोजल देखा है, वो अगर तुम्हें पर्सनली जानते होंगे, मतलब तुम अगर उनके कम्युनिटी चैनल में एक्टिव होगे, ठीक है, उनको खुद सेल्फ पिच कर रहे हो, वो तुम्हें इश्यूज दे रहे हैं, तो ये बहुत मतलब एक तुम्हारा वो स्ट्रांग बनाता है प्रोफाइल सिलेक्शन के लिए। ओके। वैसे मैंने मतलब है ना ऐसे क्यूएंड मतलब आखिरी में हमने क्यूएंडे इसलिए ही रखा है, अभी मतलब मैं धीरे धीरे कुछ टॉपिक्स थे मतलब कवर करने थे, बहुत सारे थे, तो बेसिकली एक काम करेंगे, मतलब आखिरी में मतलब तुम सब है ना क्यूएंडे पूछ लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब Okay, nahi, अगर कोई I said them to ask the questions. Okay, ओके if ओके it's ओके, fine to you. Let's continue. है ना। तो जैसे ये मेरे सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी है, तो हर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की एक सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी रहती है ना। तो जैसे मैं ना इस पे गया, अब ये क्या प्रोजेक्ट है, सबसे अब ये मेन क्वेश्चन आता है कि यार मतलब हमने ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर लिया, अब हम इसको पिच कैसे करें, मतलब इनका कोड बेस कैसे समझे, ठीक है। तो कुछ बेसिक सी चीजें हैं, सबसे पहले तो आपको गिटहब जरूर आना चाहिए, क्योंकि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन गिटहब यूज करते हैं, और भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स रहते हैं जैसे बिटबकेट हो गया, गिटलैब हो गया, लेकिन मोस्टली गिटहब यूज करते हैं, ठीक है। तो सबकी एक readme.md फाइल होती है, वो क्या है, एक फाइल रहती है जो आपके पूरे प्रोजेक्ट को बता रही होती है क्या एक्चुअली वो। तो जैसे ये मेरा जो प्रोजेक्ट था, इसमें इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि ये एक शेफ है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम है ना। इस वेबसाइट पे जाओ, ठीक है। अगर मैं इस वेबसाइट पे जाऊंगा, इस वेबसाइट पे डॉक्यूमेंटेशन रहती है, हर चीज की डॉक्यूमेंटेशन रहती है, मतलब कोई सा भी सॉफ्टवेयर है, इसे आप एज अ स्मॉल डॉक्यूमेंटेशन लोगे, मैं बड़ी डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं कहूंगा। तो इसमें ये सब कुछ लिखा है कि आपको कैसे बिगिन करना चाहिए, मतलब पहले आप है ना उनकी रिपोजिटरी फॉर्क करोगे, अपने लोकल सिस्टम में क्लोन करोगे, ठीक है। प्री रिक्विजिट्स क्या होती है, इन्वायरमेंट, बहुत सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं उनको और भी एपीआई चाहिए रहती है उसको रन करने के लिए, ठीक है। तो सब कुछ लिखा रहता है, तो आपको बेसिकली ये पूरा करना पड़ता है। अभी आप कब करोगे टाइमलाइन, ये तभी करोगे फरवरी या मार्च, मतलब वही एप्लीकेशन पीरियड के पहले ही ये करना पड़ेगा, है ना। और एक और चीज है जो मेरे को बतानी है, क्या कहते हैं, हाँ, प्रपोजल से रिलेटेड। देखो प्रपोजल का इसमें मेरे हिसाब से इन्होंने अभी फॉर्मेट शायद हटा दिया है, मैं एक सेकंड फिर भी देख ले रहा, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का मेरे पास प्रपोजल है। हाँ, हर ऑर्गेनाइजेशन एक अपना टेम्पलेट निकालती है प्रपोजल का, ठीक है। तो उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आपको अपना प्रपोजल बनाना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे आस्क, ठीक है। तो वो ऐसे खुद है ना आपको ये टॉपिक्स देते हैं कि आप बारे में लिखो, अबाउट यू, व्हाई यू आर इंटरेस्टेड, प्रायर एक्सपीरियंस क्या है। तो जो प्रायर एक्सपीरियंस वाला सेक्शन रहता है ना, अगर आपको मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट मतलब आपको सिलेक्ट होना है, तो मेरे हिसाब से यही है, जो भी आपके मेंटर्स हैं, जो कम्युनिटी चैनल में अगर आप एक्टिव रहोगे और प्रायर एक्सपीरियंस में उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही एक्सपीरियंस डालोगे कि हाँ मैंने ये इश्यू सॉल्व करा है, या ये मैंने इन्वायरमेंट डेवलप कर लिया है और मैं इस पे प्रोजेक्ट में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, बहुत ज्यादा मतलब है ना वो क्या कहते हैं आपको स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाता है सिलेक्शन की। मतलब उसी फील्ड से रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस डालना रहता है ना। और मतलब बहुत सारी चीजें रहती हैं कि कॉन्टेक्ट इन्फो, टाइम जोन, वो डिपेंडिंग ऑन ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। एसेंशियल प्रीरिक्विजिट्स सारे लोग अपने अपने मतलब वो डालते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, बेसिकली मेन मेरे हिसाब से यही है प्रपोजल का, कि आपको है ना सीधी बात कि अपना कंट्रीब्यूशन मेंशन करना है कि आपका प्रोजेक्ट है, सो आई हैव वर्कड ऑन दिस, आई हैव डेवलप्ड द एनवायरनमेंट, मतलब यही मेन है। वो आपका कंट्रीब्यूशन देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि आपका प्रपोजल कितना बड़ा है या आपने इंटर्नशिप कर रखी है किसी और, वो यही देखेंगे कि आप हमारे प्रोजेक्ट में कितना फोकस्ड हो, हाउ मच डेडिकेटेड यू आर इन वर्किंग विद अस। ओके, तो प्रपोजल का ये है। और एक बार मैं टाइमलाइन पे भी आ ही जा रहा, है ना। तो मार्च के अराउंड है ना ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट हो जाती हैं। फरवरी में आपको क्या करना है, उनके ना आईआरसी चैनल्स ज्वाइन करने हैं, उनसे इंटरेक्शन शुरू करना है। इसी टाइम मतलब आपको जो भी कोई सा भी सॉफ्टवेयर है उसको अपने लोकल में करना है, यूज करना शुरू कर देना है। जैसे मतलब कोई सा भी अपन कोई सा ऐप यूज करते हैं, हर किसी का एक सॉफ्टवेयर ऑनगोइंग रहता है। अब उसमें क्या रहते हैं, बग्स रहते हैं कि मतलब प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, तो आपको मतलब उससे फेमिलियर होना पड़ेगा
कि मतलब वी आर यूजिंग इट, ठीक है, जब यूज करोगे तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। अब जब आप उनसे है ना आईआरसी चैनल जो उनके चैनल्स हैं उस पर पूछोगे कि ये आ रही है, तो वो लोग भी मतलब ये इंटरेक्टिव, सबसे मेन है इंटरेक्शन, ठीक है, मेंटर्स और मेंटर्स से जो उस ऑर्गेनाइजेशन के हैं, है ना। तो मार्च 9 के अराउंड है ना ये हो जाती है, और मार्च के अराउंड तो बहुत एक्टिव हो जाती है वो लोग, मतलब और भी बहुत सारे लोग, क्योंकि ज्यादातर लोग एक्टिव मार्च में ही होते हैं जीसॉक के लिए, है ना। तो उस टाइम ये लोग सिलेक्शन शुरू कर देते हैं एक तरीके से कह लो, है ना। 29 को है ना एप्लीकेशन, स्टूडेंट एप्लीकेशन पीरियड बिगिंस रहता है। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, प्रपोजल बनाना शुरू करना पड़ता है। प्रपोजल में आपको तभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट वो ऑर्गेनाइजेशन यही देखेगी कि आपने क्या कंट्रीब्यूशन कर रखा है। 13 अप्रैल तक है ना मतलब आपका है ना वो प्रपोजल सबमिट हो जाता है ना। फिर May 3 और May, अब आपको अप्रैल 13 के बाद मतलब अभी कुछ नहीं करना रहता। वैसे वो आपको मैं सही बताऊं तो मार्च के अराउंड ही पता चल जाएगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्शन कैसा है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैंने 3 ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करी थी, है ना। तो जो मेरी क्रॉस थी, तो मैंने मार्च के अराउंड उनसे बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होने लगा था, मतलब मेल पे भी डायरेक्ट पर्सनल मेल करता था मैं कि ये प्रॉब्लम है। तो वो ये इश्यूज मेरे को, उन्होंने 1-2 इश्यूज दिए थे मेरे को, है ना। अब मेरे को इश्यूज क्या है, मेरे को डायरेक्ट तो आएंगे नहीं क्योंकि इतना है नहीं। तो मैंने मतलब खूब 5 डेज, अभी आपको थोड़ा मेहनत का टाइम है, वही बिफोर द प्रपोजल पीरियड आपको वो कंट्रीब्यूशन, स्लाइट कंट्रीब्यूशन भी, इट मैटर्स मोस्ट। ओके, फिर इसके बाद क्या है, और वो लोग है ना चूज करते हैं, आपका प्रपोजल देखते हैं, May 13 के अराउंड है ना शायद है ना वो फाइनल करते हैं, और 17 को आपके मतलब जो भी सिलेक्टेड हो जाते हैं स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स, तो आपका एक बार मतलब सिलेक्शन, उसके बाद भी अब मेन काम शुरू होता है, ठीक है। मतलब है ना ये तो है ना पूरा, ठीक है, जीसॉक मतलब आपका टैग आ जाएगा इसके बाद। फिर एक कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड रहता है। इस कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड में क्या है, आपकी लाइव सेशंस या मीट सेशन शुरू हो जाते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कि हमें ये हमारा फ्लो ऑफ वे है, हमें इस पे इस वीक में ये काम करना है, ये डॉक्यूमेंटेशन लीड करनी है, नई तरीके की टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर करनी है, कैसे क्या करना है ना। फिर बेसिकली जीसॉक में क्या है, 7 जून से कोडिंग ऑफिशियली शुरू हो जाती है ना। तो इसके 2 इवेल्युएशन होते हैं। फेज 1 इवेल्युएशन होता है एक बीच में 16 जुलाई, जिसमें है ना फेज 1 अगर आपने पास कर दिया तो फिर वो स्टाइपेंड का आधा देते हैं, हाफ स्टाइपेंड पास करते हैं, है ना। और जो फाइनल इवेल्युएशन होता है वो आई गेस हाँ 23 अगस्त के अराउंड होता है। तो और 31 अगस्त को फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं, है ना। आपको पूरा फिर स्टाइपेंड मिल जाता है। और इसके बाद भी अगर आप इनके साथ ऑर्गेनाइजेशंस अगर आपका मतलब काम अच्छा देखेंगे, सबसे बड़ा मतलब पर्क यही है कि ऑर्गेनाइजेशन आपसे कह रही है कि आप जीसॉक के बाद भी हमारे कोड के मतलब एज अ मेंटेनर रहो। और सबसे ज्यादा मतलब नेटवर्क बढ़ता है सबसे ज्यादा, मतलब मैं जैसे मुझे बहुत सारी चीजें कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड और कोडिंग पीरियड के अंदर सीखने को मिली, ठीक है। मैंने कंट्रीब्यूशंस करे, वो ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट होने के मतलब मार्च और फेब में करे थे थोड़े बहुत। और उसके बाद जितनी भी रियल जो वर्क एक्सपीरियंस रहता है ना, वो आफ्टर कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड ही मिला। और ऐसा नहीं है कि मेरे को मतलब मैंने बोला था कि जैसे C++ हो गई या शेफ हो गया, सिर्फ यही रिक्वायर्ड, उसके बाद भी मुझे ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ी जो मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड थी। तो ये बहुत मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है, वही एक बार देखना, है ना। और मैंने ना जैसे ये बता ही दिया है कि ना ये कैसे करना है। एक बार मैं वापस आ जा रहा हूँ स्लाइड पे, मैंने कोई सा पॉइंट मिस तो नहीं करा, ठीक है। जर्नी मैंने आपको बताई दी, हाँ। तो यार अब है ना एक बार है ना जीसॉक के अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं ओपन सोर्स वर्ल्ड में, तो एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यार जीसॉक के अलावा जैसे आउटरीच ही हो गया। आउटरीच ही भी एक है ना ऐसे ही ओपन सोर्स प्रोग्राम होता है, उसमें भी वो डेवलपर्स को ऐसे सिलेक्ट करते हैं। यही सेम प्रोसेस रहता है, उसमें भी प्रपोजल का रहता है। उस प्रपोजल में वो आपके कंट्रीब्यूशन को देखते हैं कि आपने हमारी किस ऑर्गेनाइजेशन में कितना कंट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है। एक MLS फेलोशिप हुआ, ये थोड़ा अलग है, ये मेरे हिसाब से बिगिनर फ्रेंडली है, बहुत ईजी है। मतलब मेरे दोस्त का हुआ था, ही वाज टेलिंग मी हिज एक्सपीरियंस। लाइक इसमें ये लोग आपका कंट्रीब्यूशन तो चेक नहीं करते, आपने जो पहले से खुद का जो प्रोजेक्ट है, जैसे अपने बहुत सारे वेब डेवलपर्स हुए या एंड्रॉइड डेवलपर्स हुए, है ना, आपने खुद की एक वेबसाइट बना रखी है, तो इसमें कोड सबमिशन करना पड़ता है बेसिकली MLH फेलोशिप में, कि आपने कोड सबमिशन कर दिया। और फिर 2 इंटरव्यू होते हैं, एक HR राउंड होता है और एक टेक्निकल राउंड। और टेक्निकल राउंड में वो सिर्फ आपने जो कोड जो कर रखा है ना, वही उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछेंगे, नथिंग एल्स। सो इट इज वेरी बिगिनर फ्रेंडली टू स्टार्ट योर ओपन सोर्स जर्नी, है ना। गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड भी होता है, ये भी मतलब है एक ओपन सोर्स का। और गूगल समर ऑफ डॉक्स बेसिकली ये भी होता है ना। इसमें क्या रहता है, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन का काम रहता है। और एक्सपीरियंस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, इसके क्या क्या पर्क्स हैं आपको। मतलब वही मेरे मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, दे वर वर्किंग इन रेड हैट इन जर्मनी। सो लाइक
I have increased my network with them. They are also telling me what are your next opportunities in your early phase career, है ना. तो कनेक्शंस बनाने के लिए ओपन सोर्स में आप ये जो कम्युनिटी वाली जो चीज है ना, बहुत फायदेमंद रहती है. और रेज्यूमे में तो आपको पता ही है, ओपन सोर्स अगर आप मेंशन करोगे, इट बिकम्स स्ट्रांग दैट यू आर अ स्ट्रांग कैंडिडेट अदर देन योर रिमेनिंग फेलोज बैचमेट्स, है ना. बेनिफिट्स है ना यही है कि आपकी कोडिंग प्रैक्टिसेस, जब रियल लाइफ सॉफ्टवेयर पे आप काम करो, बहुत सारे कोडिंग फॉर्मेट्स यूज करने पड़ते हैं. तो यार मतलब एक चीज जैसे मैं बता रहा, एक फॉर्मेट रहता है पर्टिकुलर तरह का, बहुत सारे फॉर्मेट्स रहते हैं. अपन तो क्या है मतलब ऐसे मतलब कॉम्पिटिटिव कोडिंग जो करते हैं, तो वी बेसिकली फोकस ऑन टाइम, कि हमारी टाइम लिमिट एक्सीड ना हो, टाइम कम हो. जबकि जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें आपको बहुत क्लियरली मेंशन करना पड़ता है. कोई सा फंक्शन बनाया या कुछ भी बनाया, उसका जो टाइट मतलब जो नेम भी दोगे ना, वो पूरा देना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि कोई सा भी हेलो वर्ल्ड या मतलब कुछ भी कर दिया. तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, है ना. तो यार रोड मैप तो क्या ही है, स्टेप्स हैं जो अपने को करने पड़ेंगे बिफोर द जीसॉक टाइमलाइन, है ना. अगर आपको है ना मतलब जीसॉक में पार्टिसिपेट करना है, तो यार सबसे पहला स्टेप वही है कि एक स्किल आपको आनी चाहिए. अब वो स्किल किसी फील्ड से रिलेटेड होनी चाहिए. जैसे वेब डेवलपमेंट हो गई, एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो गई, मशीन लर्निंग हो गई, टेक्निकल राइटिंग हो गई. ठीक है, टेक्निकल राइटिंग भी एक ये है, इसमें बहुत सारे फॉर्मेट यूज करे जाते हैं. जैसे मार्कडाउन फॉर्मेट हो गया, रिस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट हो गया. क्या है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने सॉफ्टवेयर बना लिया है. अब उनको क्या चाहिए कि हमें इसको प्रेजेंट करना है टू एवरीवन. सो दे नीड समवन हु कैन राइट देम टेक्निकली इन अ बेसिकली नाइस फॉर्मेट. सो जैसे कि जितने भी ये जो readme.md है ना, ये भी एक फॉर्मेट है, मार्कडाउन फॉर्मेट है. तो कोई सा भी सॉफ्टवेयर है उसकी डॉक्यूमेंटेशन ये पूरा इस पे भी है ना, ये रहती है टेक्निकल राइटिंग पे, है ना. क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, है ना, AWS, बहुत सारी है, ब्लॉकचेन पे भी है आई गेस प्रोजेक्ट्स. तो डिपेंडिंग ऑन योर स्किल, आपको एक स्किल आनी चाहिए. फिर सेकेंड स्टेप क्या होता है आपका, देखो वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है हमारा. हम जैसे कोई सा भी कोड लिख रहे हैं, इफ मैनी यूजर्स आर यूजिंग दैट कोड, सो दे शुड बी नोइंग अबाउट लाइक मैं ये चेंजेस कर रहा हूँ, आप अपने कोड में अलग चेंजेस करो. तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम इसी में हेल्प करता है गिटहब, कि जैसे मैंने है ना 2 पेजेस का है ना मतलब ऐसे एग्जाम्पल कोड करा है, तो आप इसके 2 पेजेस के आगे से कोड करना शुरू कर दो. तो ब्रांचेस रहती हैं उसमें. तो यार गूगल समर ऑफ कोड में आई गेस मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का देखा है, सब गिटहब ही यूज करते हैं. तो आपको सबसे ज्यादा फेमिलियर गिटहब कमांड से होना चाहिए, है ना. फिर थर्ड मैंने आपको ये बता ही दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे सिलेक्ट करनी है, बेस्ड ऑन डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स. हाँ, एक और दूसरा पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करते टाइम ये जरूर देख लेना कि वो कितनी एक्टिव है. मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी रहती हैं जो मतलब थोड़ा मेरे में जैसे मैंने है ना एक और सिलेक्ट करी थी, तो वो बहुत ही कम एक्टिव थी, मतलब मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था उनके कम्युनिटी के साइड से. तो मैंने कहा ठीक है, इस पे कम ध्यान देना है, मेन ध्यान जिसमें मेरे को रिस्पॉन्स ज्यादा आ रहा है, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन पे ज्यादा फोकस करूंगा, है ना. और चौथा ये है फाइंड अ बग या फीचर. तो यार इसके देखो 2 तरीके हैं. आपने ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर ली, उसकी गिटहब रिपोजिटरी पे चले गए जहां उनका पूरा पेज है, जहां उस पे वो लोग वर्क कर रहे हैं, है ना. अब बग या फीचर करने के लिए इश्यूज वहां बहुत सारे मेंशन्ड रहते हैं, है ना, कि ये बिगिनर फ्रेंडली है, उस पर लेबल रहता है. मेरे केस में क्या है, उन्होंने बिगिनर फ्रेंडली इश्यूज तो थे नहीं. मैंने कम्युनिटी चैनल पे उनसे डायरेक्ट पूछा कि ठीक है, मैं ना ये आपका मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया है ना, इसको यूज भी कर रहा हूँ, आप अगर कोई सा इश्यू हो तो मेरे को असाइन कर दो. मतलब खुद से ये सेल्फ से होना चाहिए कि सेल्फ वी आर पिचिंग टू देम, दे वुड बी लाइक ओके ही इज वर्किंग, ही इज डेडिकेटेड टू अस, ही वुड बी वर्किंग. तो मैंने उनसे सेल्फ पिच करा, ठीक है, उन्होंने मेरे को फिर है ना एक इश्यू दिया कि ये इश्यू आ रहा है. अब फिर वो आप पे रहता है कि हाउ यू शुड रिजॉल्व देम. ठीक है, उसमें कम्युनिटी में भी पूछ सकते हो कि यार मतलब सब लोग क्या है, बहुत सारे लोग काम कर रहे रहते हैं. आई गेस February to March कह रहा हूँ, तो सेम इशू पे 5 लोग काम कर रहे थे, है ना. 5 में से 3 लोगों ने उस इशू को रिजॉल्व कर लिया, है ना. और अब ये डिपेंड करता है कम्युनिटी आपकी कितनी पॉपुलर है. अगर ज्यादा बड़ी कम्युनिटी होगी, लाइक इफ देयर आर आई गेस लाइक ओपिया फाउंडेशन, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो ओपिया फाउंडेशन ने 18 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करा था. मेरी वाली ऑर्गेनाइजेशन ने 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करा था, है ना. तो जो ज्यादा पॉपुलर रहती है ऑब्वियसली वो हार्ड है थोड़ा, क्योंकि मतलब जैसे आप अगर अभी से ही है ना कोई सी स्किल सीखना भी शुरू करोगे, लेकिन माइंड में ये चीज रहनी चाहिए कि यार समवन बेटर देन मी इज आल्सो प्रेजेंट देयर, सो ही इज आल्सो कॉम्पिटिटिंग विद अस. तो ये थोड़ा ध्यान में रख के ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करनी चाहिए कि यार इतनी पॉपुलर भी नहीं होनी चाहिए कि मतलब बहुत सारे लोग हैं, कंपटीशन जितना कम होगा ऑब्वियसली. स्किल्स जैसे मेरे में शेफ थी, तो ये मतलब एक अलग ही स्किल्स थी जो मैंने सीखी थी, रिस्क लिया था मैंने भी कि चलो सीख लेते हैं, ओके. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई सा यूनिक चीज, यूनिक पाथ पे चल रहे हो ना, आपका कंपटीशन अपने आप लेस हो जाएगा. जितने हार्ड पाथ पे आप चलोगे, उतना ज्यादा आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे.
ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हो गए आपको कैसे मतलब है ना पिच करना है ओवरऑल, है ना। फिर यार एक काम करते हैं, गिटहब सेशन लेते हैं, है ना। तो पहले मैं एक बार आपको ओवरव्यू ऊपर से बता दे रहा कि ये गिटहब के बेसिक कमांड्स करते क्या है ना, किसी को मिशाल, हाँ आई विल रिक्वेस्ट कि अगर इनमें से किसी को अभी तक के सेशन में कोई डाउट है ना रिगार्डिंग द ओपन सोर्स एंड हाउ यू स्टार्टेड, तो वो अभी एक बार कर लेते हैं, फिर उसके बाद गिटहब का अपन उसके बाद शुरू कर सकते हैं। हाँ हाँ जस्ट 5 to 10 questions. If anyone has any questions, they can just unmute themselves and ask it or write down in the chat. Chirag, we have also Apurv and Karthik, so yeah, they can also Yes. respond. Yes. Okay. So if you are having any, how many students are there for a company? Means how many students are selected for a particular organization? इसका क्या criteria रहता है, एक बार ही बता दो। Chirag, can you please once more repeat your How question? many students are selected for a particular organization? इसका क्या criteria रहता है अलग-अलग companies के लिए? कोई 12 भी select करती है तो कोई एक ही select हाँ, करती है। तो वही मैं इसी चीज पे बोलने रहा था कि जैसे ओपिया फाउंडेशन है, ये थोड़ी पॉपुलर है, ये एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए है ना। तो वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, है ना। सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो फोसेशिया है, ठीक है, वो अपने खुद के इवेंट्स भी कराती है। सो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके उतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे, है ना, और उतने ज्यादा स्टूडेंट्स उससे इंटरेक्ट करेंगे। तो ये एक पॉइंट रहता है। अब वो आपको खुद देखना पड़ता है, आपको खुद पता चल जाएगा जो कम्युनिटी चैनल रहता है उस पर कौन कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे मैंने जब करा था तो मेरे साथ वाले भी और करीब 20 to 35-40 स्टूडेंट्स थे, जिसमें इंटरनेशनली बाहर के स्टूडेंट्स भी पिच करते हैं वही मेंटर्स को, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। वो ये सब चीजें तभी पता चल पाएंगी जब आप उस कम्युनिटी के थोड़े पार्ट बनोगे, मतलब थोड़ा ज्वाइन करके पता चलेगा कि हाँ ये सेशंस हो रहे हैं या क्या हो रहा है। तो ये सब उसके बाद पता चलता है बेसिकली। हाँ, you can just see that. हाउ मेनी स्टूडेंट अप्लाइज फॉर अ कंपनी ऑन एन एवरेज? यार देखो, इसका मेरे को एग्जैक्ट रेशियो तो नहीं पता, वैसे गूगल की साइट पे दिया था, जीसॉक की साइट पे, कि कितने लोगों ने अप्लाई करा था, सिलेक्शन परसेंटेज कितना है, ठीक है। ओवरऑल सिलेक्शन परसेंटेज मतलब जितने लोगों ने प्रपोजल सबमिट करा था, आई गेस वन टोटल इस साल 1129 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे, है ना। आउट ऑफ, अब मान लो इट कैन डिपेंड ऑन कि कितने लोगों ने प्रपोजल सिलेक्ट करा है। और जहां तक की रेशियो उन्होंने बताया था, एक सेशन हुआ था जीसॉक का ही जिसमें उन्होंने बताया था कि 10,000 से ऊपर एप्लीकेशंस आए थे, है ना। अब ये जो रहता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में अपना प्रपोजल सबमिट कर रहे हो, ये मैंने वही बताया यह है कि आपको कैसे ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी है, कितनी इंटरेक्टिव है, ठीक है, उसके स्किल्स के बेसिस पर आपको वो स्किल्स कितनी अच्छी आती हैं। तो मैंने जनरली ये देखा है कि स्टूडेंट्स, मतलब मेरे साथ भी मैंने यही सोचा था कि यार मैं वेब डेवलपमेंट की जर्नी शुरू कर रहा हूँ, मतलब, है ना। तो यार मतलब मेरे से अच्छे और भी होंगे, बहुत पहले से ही होंगे। ओके, आई वाज इन सेकेंड ईयर दैट टाइम। तो मैंने सोचा यार कोई ऐसी स्किल चूज करते हैं जो यूनिक हो, कोई दूसरा ना कर रहा हो और थोड़ी सी हार्ड हो, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, कर लेंगे। ये था मेन। विच फील्ड हैव मोर कंपटीशन, वेब डेव और डेटा साइंस फॉर सिलेक्शन? यार अपूर्व, यू वांट टू आंसर, और कार्तिक, क्योंकि इसने वेब डेवलपमेंट में काम कर रखा है अच्छा सा। इज कार्तिक हियर बाय द वे? हाँ ओके। यार, ये तो बड़ा मुश्किल है कि कौन सा ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। ज्यादा तो मेरे ख्याल से वेब डेव के ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा होंगे, लेकिन फिर भी ये मैटर कम करता है। जिसमें तुमको इंटरेस्ट हो वही चूज करना चाहिए। First of all, I would thank Karthik to attend this session. So, guys, Karthik is from my batch only, and he has cracked his GSOC in his first year, right? So, मेरा एक YouTube चैनल है, उसमें मैंने इनके साथ पॉडकास्ट भी कर रखी है. So, यार, he is really talented. So, thanks Karthik for coming in this session. Now you can continue answer. थैंक यू चिराग। है ना। और अगला क्या है, फॉर जीसॉक डज वी शुड हैव टू मेक आवर प्रोजेक्ट्स? यार प्रोजेक्ट्स स्किल्स तुम कैसे बढ़ाओगे अपना, जब प्रोजेक्ट बनाओगे तभी तो है ना वो स्किल्स कर पाओगे। तो जैसे मेरे केस में जो शेफ था, तो वो मैंने सीखने टाइम ही अपना खुद का वो लोकल में डाउनलोड करा था और यूज करने लगा था उस टेक्नोलॉजी को। तो यार जैसे अगर तुम मतलब वेब डेवलपमेंट के लिए कर रहे हो, तो यार तुम्हारा प्रोजेक्ट तो होना ही चाहिए ना, तभी तो मतलब तुम अपनी स्किल्स प्रेजेंट करोगे कि आई हैव माय दिस साइट, आई नो दीस फ्रेमवर्क्स एंड आई हैव वर्कड ऑन एंड आई एम यूजिंग इट। Sir, for the blockchain, I find it difficult to find projects on GSOC site. So how to find easily? यार देखो, ब्लॉकचेन के वैसे मैंने ना चेक तो नहीं करे हैं, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। आई गेस थे कुछ ब्लॉकचेन के।
ओके, इसमें तो नहीं बता रहा है, एक सेकंड रुको। हाँ, ये कैटेगरी रहती है, कैटेगरी वाइज, जैसे ये कैटेगरीज हैं, इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में आपकी स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, ये वेब वाली वेब डेवलपमेंट की हो गई। साइंस एंड मेडिसिन ये अलग ही फील्ड हो गई, इसमें टेक्नोलॉजी भी इंक्लूडेड है। एंड यूजर्स एप्लीकेशन, आई गेस इसमें एंड्रॉइड डेवलपमेंट और मतलब वही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी यूज होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड डेवलपमेंट टूल्स, ये भी मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर लग रहते हैं यार। मतलब मेरा भी अगर मतलब मैं किसी को समझाऊंगा ना कि मेरा जैसे शेफ था, ऑब्जेक्ट स्टोरेज सॉफ्टवेयर था, तो वो मेरे को भी मतलब 1 साल पहले या 2 साल पहले तक मुझे भी नहीं पता चलेगा। तो बहुत सारे डिफरेंट डेवलपमेंट जो रहती हैं, जिसपे कंपनियां काम कर रही रहती हैं या बना रही रहती हैं, है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग भी एक पार्ट है ना। ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो, वर्चुअल रियलिटी, इन सब में मतलब बेसिकली मैंने देखा है, जैसे वीडियो, ऑडियो, वर्चुअल रियलिटी में इंटीग्रेशन करना पड़ता है एपीआईज को। तो यार एपीआईज को यार अपन ऐसा मान सकते हैं, एक सर्विस है जो अपने को इनपुट आउटपुट के लिए हेल्पफुल है, मतलब कुछ दे रही है, और मैच करना पड़ता है सॉफ्टवेयर के लिए। मतलब मेरे केस में थोड़ा था तो मैंने बता दिया। और सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वैसे ब्लॉकचेन का आई गेस सिक्योरिटी वाले पार्ट में आना चाहिए। जैसे कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, आ, मैंने वैसे सिक्योरिटी पार्ट एक्सप्लोर नहीं करा है। जैसे मैं एक रैंडम ऑर्गेनाइजेशन पिक कर लेता हूँ, उसकी टेक्नोलॉजीज देखता हूँ। तो यार देखो, जैसे है ना, इसकी भी एक अलग टेक्नोलॉजी है, एलएलवीएम और रस्ट। रस्ट भी एक लैंग्वेज है। तो यार सबकी अलग अलग रहती हैं। वही ब्लॉकचेन से यार आपको डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं मिलेगी, ये टेक्नोलॉजीज वाला पार्ट आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि आप किस, ये वैसे सिक्योर डेवलपमेंट, मतलब बहुत सारी चीजें रहती हैं। वो तभी पता चलेगा जब आप उस पर वर्क करोगे, है ना। Also Sir, I had Vishal, a हाँ, okay, Akshat, please ask your question. So as Yes. we are nearing October end now, and like most of us must be in some sort of development already. For example, someone is already in Android development or web development, and ये तो बात है कि इनमें competition ज़्यादा होगा because ज़्यादा लोग यही सीखते हैं. So अब contribution तो we should actually start December January से ही. So the thing is कि अब हम नई टेक्स्ट जैसे C++ तो खैर हमें आता ही है, Java भी बेसिक्स आते ही हैं. तो should we go with our thing only जो हमें डेवलपमेंट आता है already, या should we actually go and see कि हम कोई नई टेक्नोलॉजी लर्न करके वो करें? मतलब चांसेस किस में ज्यादा होते हैं in your experience, what would you say? यार देखो, सीधी बात है, चांसेस उसमें ज्यादा है जितने लोगों को कम चीज पता होगी। जैसे शेफ अलग ही टेक्नोलॉजी थी जो मैंने सीखी थी खुद से, तो यार चांसेस मेरे बढ़ गए थे, है ना। तो यही है। और मतलब अगर जैसे तुम मतलब वेब डेवलपमेंट अच्छा कर रहे हो अभी से, और तुम मतलब चाहते हो कि यार मेरे को मतलब अब इसी में करना है आगे, मतलब फाइनल एक स्किल, तो यार फिर स्विच मत करना। क्योंकि अगर तुम पहले से ही मतलब मॉडरेट लेवल पे हो, तो आई गेस यू शुड नॉट चेंज योर टेक्नोलॉजी। और अगर तुम अभी से ही स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं मतलब तुम्हें ऐसा रिकमेंड कर सकता हूँ कि किसी नई टेक्नोलॉजी पे काम करो। क्योंकि इन दी एंड मतलब यू आर एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ। बट आई गेस यू आर इन सेकेंड ईयर, सो लाइक थर्ड ईयर जैसे जैसे आता है, तो यार इंटर्न के लिए भी कंपनी आनी पड़ती है, तो कोडिंग पे भी फोकस करना पड़ेगा। तो यार वो मैनेज करने की चीज है यार, मतलब। लेकिन हाँ चांसेस हाँ सर, उसी हाँ में है, समझ रहा यूनिक जितना करोगे, जितना लोगों से अलग होगा, उतने ज्यादा तुम्हारा परसेंटेज चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ेंगे। हूँ. Okay. ऑल्सो मिशाल, क्योंकि इस मीट की लिमिट एक्सीड हो गई थी, तो दूसरी मीट से एक क्वेश्चन आया अपने पास. द क्वेश्चन इज दैट, डू वी हैव टू मास्टर ऑल टेक्नोलॉजीज फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन? नहीं, देखो, सारी टेक्नोलॉजीज मास्टर करना तो बेसिकली इम्पॉसिबल ही है, मास्टर वर्ड करना ही। मेन टेक्नोलॉजीज जो उस प्रोजेक्ट में यूज हो रही हैं, जैसे कि एक सेकंड, हाँ, ये थी। अब इसमें तो देखो टॉपिक्स इसकी भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं, लेकिन मैंने इतना नहीं इसमें डीप में नहीं गया। ठीक है, C++ आती है अपने को, एरो और शेफ, बेसिकली मैंने इन दोनों पे काम करा था। और बची बात रोबोटिक्स की, तो यार देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो वो एक ओवरऑल डिफाइन कर देते हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट्स है ना, उन सब में हम ये टेक्नोलॉजीज यूज करने वाले हैं। तो सारी यूज करना नहीं है, उस पे जाने के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट हो गई, प्रोजेक्ट्स की फिर एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी करनी है। जैसे ये मैं बता रहा हूँ, ये रहा एक कोई सा प्रोजेक्ट है, मॉक टर्टल, है ना। तो इन्होंने साफ लिख रखा है सिर्फ 2 स्किल्स आनी चाहिए आपको, C++, ओके, और सिंथेसिस एक एपीआई है, वो आनी चाहिए। तो वही है, सारी तो नहीं, जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है ओनली वही आनी चाहिए। Also, one more question is being asked, so I think Karthik will be best to answer this question. So Karthik, Yes. the question is from Ayush Mittal. So he asked that which year students are most likely to crack GSOC? मतलब फर्स्ट ईयर में डेवलपमेंट का कोई एक्सपीरियंस होता नहीं है, ठीक है, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द राइट वे टू गेट स्टार्टेड, और कौन से ईयर में हमें प्रिपेयर करना चाहिए और क्या सीन रहता है?
यार ये तो आंसर करना मुश्किल है कि किस ईयर में ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। सिर्फ ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। अगर तुम डेडिकेटेड हो, तुम्हारा इंटरेस्ट है और तुम ठीक ठाक टाइम भी दे पा रहे हो तो फर्स्ट ईयर में भी हो सकता है, और अगर नहीं तो सेकंड ईयर में भी कर सकते हो। बाकी तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने थर्ड और फोर्थ ईयर में जी सॉक ट्राई करते हैं। तो ये मोस्टली मतलब स्टूडेंट पर ही डिपेंड करता है, तुम्हारे इंटरेस्ट पर ही डिपेंड करता है। हाँ, मतलब कि कौन सी टेक्नोलॉजीज आप यूज कर रहे हो, एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि आपका इंटरेस्ट कितना है, कि हाँ आप हाँ क्या पहले से उस ऑर्गेनाइजेशन को जानते हो, अच्छे से उसमें कंट्रीब्यूट कर रखा है, तो इट गिव्स यू अपर एज। हाँ, अगर 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 तुमने फर्स्ट ईयर में ही ठीक ठाक पहले से अगर कंट्रीब्यूट कर रखा है तो फर्स्ट ईयर में ही तुम्हारे चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन मान लो अगर तुम्हें फर्स्ट ईयर में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करने में थोड़ा देर हो गया है और तुमने उतना कंट्रीब्यूट नहीं करा है, तो फिर वो चीज़ तुम्हारे नेक्स्ट ईयर में काउंट करेगी कि तुमने तुम्हारा टाइम मतलब तुमने कितना टाइम स्पेंड करा है उस और के साथ, वो बढ़ जाएगा तो सेकंड ईयर में तुम्हारे चांसेस और बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये सिर्फ स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, वो कितना डेडिकेटेड है, कितना टाइम दे पा रहा है। कूल कूल, थैंक यू कार्लो। आयुष के क्वेश्चन को अगर मैं रिप्लाई करूं तो यार देख, वेब डेवलपमेंट, लाइक व्हाट शुड आई लर्न नेक्स्ट। यार देख, क्लाउड कंप्यूटिंग आई गेस कॉलेज मतलब एकेडमिकली इतना आपको कॉलेज वाले नहीं पढ़ाएंगे। तो ओवरऑल अगर इंडिया लेवल पे देखोगे यार, तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ न्यू, कह सकते हो। बहुतों को आती है लेकिन मैक्सिमम को नहीं आती क्लाउड कंप्यूटिंग। वेब डेवलपमेंट और एंड्रॉइड डेवलपमेंट एक ऐसा पार्ट हो गया, हर बीटेक स्टूडेंट चाहता है कि हम इसमें प्रोजेक्ट बनाएं। तो यार क्लाउड कंप्यूटिंग का एक, हाँ कह सकते हैं अपर एज है, लेकिन यही है, फिर उसको आपको थोड़ा सा स्किल में थोड़ा सा मास्टर करना पड़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन में उसी पे ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो आई कैन से मतलब ये तो, ये नहीं कहूंगा मैं कि वेब डेवलपमेंट का ऐसा नहीं है दोनों का, लेकिन ये क्लाउड कंप्यूटिंग थोड़ा एक अलग साइड का फील्ड है, उसे एक्सप्लोर करना मतलब मेरे हिसाब से करना चाहिए एक्सप्लोर। क्लाउड कंप्यूटिंग यार गूगल का जैसे खुद का रहता है क्लाउड शेल, है ना, कंसोल रहता है गूगल का, amazon का AWS amazon वेब सर्विसेज रहती हैं। अब इनको सीखने का क्या रहता है यार, मैंने देखो इसमें ज्यादा डीप में नहीं गया था, मेरे प्रोजेक्ट में क्या है, इसका स्टार्टिंग का पार्ट यूज था। ठीक है, तो गूगल का एक यार वैसे प्रोग्राम रहता है यार, 30 days ऑफ गूगल क्लाउड, है ना। उसमें बेसिकली वो आपको फ्री, है ना, खुद रिसोर्सेज देते हैं कि आप हमारे जो गूगल कंसोल है या क्लाउड शेल है उसको सीखो। वो बिल्कुल ऑटोमेटेड रहता है पूरा, लैब मतलब, है ना, उसमें सब कुछ लिखा रहता है, आपको खुद मतलब रहता है। वैसे एक सेकंड, हाँ ये लिंक है, मैं एक सेकंड बता दे रहा, इसमें नहीं करूंगा मैं। ओके, तो यार देखो यार, ये गूगल क्लाउड का है बेसिकली। तो इसमें ये अलग अलग, है ना, इन्होंने मतलब टास्क डाल रखे हैं, जैसे अलग अलग क्यूबरनेटिस यूज होता है, कैसे हमें ना एक क्लाउड एनवायरनमेंट डिप्लॉय करें, है ना। लैब शायद, है ना, इसमें आएगी, एक बार मैं देख ले रहा। हाँ ये रही, जैसे लैब है ना, तो ये ऑटोमेटेड लैब है। इस पे आप जैसे जाओगे, अलग अलग टास्क रहते हैं, है ना, स्टार्ट लैब का ऑप्शन रहता है। अब मेरे हिसाब से इसमें सारे फ्री तो नहीं, मतलब खुलता है 30 days ऑफ गूगल क्लाउड का, है ना। ये तो वैसे ये फ्री है सेशन, मतलब ये आप कर सकते हो, जैसे कि मैं बता दे रहा, जैसे ये रहा कि आप प्री रिक्वेस्ट है, तो मतलब ये खुद सेल्फ लर्निंग लैब है, इसमें आपको बस इससे सीखना है। तो मेरे हिसाब से क्लाउड की स्किल्स ये, तो उसका भी यूज कर सकते हैं। यार क्यूबरनेटिस मैंने बेसिकली ज्यादा यूज तो नहीं करा है, लेकिन मुझे जहां तक पता है कि यार मतलब इन्वायरमेंट सेटअप के लिए रहता है, पूरा कोड बेस है ना, मतलब एज अ डॉकर, डॉकर अगर जैसे यूज कराओ, पूरा इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट अगर अपन कोड बेस पे यूडेमी, यूट्यूब और अदर साइट। मेरे केस में यार देखो, यूडेमी और मतलब दूसरी जगह तो, है ना, मिला नहीं था, मैंने यूट्यूब को ही फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी। यूट्यूब पे बहुत बेस्ट वीडियोस हैं, जितना आप मल्टीपल सोर्सेज से मतलब सीखोगे उतना ज्यादा अच्छा कंटेंट मिलेगा मेरे हिसाब से तो। कूल, देन अगर किसी को और कोई डाउट है तो दे कैन आस्क और वी कैन कंटिन्यू विद द सेशन। Okay, Ayush, for that you can connect with our social media handles and there we can help you out. Okay. Yeah. So I think we will be having a at the end of the session also. So let me just carry out my overall session. Okay. Just last question from the other meet that we are having. So the question is from Maheshwar, and he is asking that, sir, how much time did you devote weekly? Okay. So please answer this.
यार देखो, इसका कोई मतलब वैसा आंसर तो नहीं है। मेरे माइंड में तब यही था कि यार अब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे यही मेरा मेन काम है। तो मतलब ऐसा कुछ मैं आंसर नहीं करूंगा कि भाई 6 घंटे 7 घंटे। हॉबी की तरह लिया था मैंने कि यार मुझे मजा आ रहा है यार डेवलपमेंट के काम में। नई चीजें हैं उसको एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात, जब मेरा कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन हो रहा था ना, तो मैं उन बंदों की प्रोफाइल पे जा रहा था कि यार ये करते क्या है, वो मेरे को रिस्पॉन्स दे रहे हैं या मेरे को कह रहे हैं कि हाँ ठीक है तुम इस पे वर्क करो। तो मेरे को अंदर से वो थोड़ा सा मोटिवेशन आ रहा था कि यार नई चीज एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है। तो एज मैं कुछ टाइम पे तो कुछ कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन वही है, हॉबी की तरह कुछ चीज करोगे तो यार टाइम ऑब्वियसली तुम अच्छे से ही करोगे डिवोट। ये है। सो नाउ कैन आई you प्रोसीड? can continue with this. या तो यार थोड़े के कमांड्स देख लेते हैं। बेसिकली गिटहब सबको आता है, अब ये थोड़ा पार्ट था सेशन का इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, वो एक ओवरऑल ऊपर से ओवरव्यू ले ले रहे हैं। गिट इनिट क्या करता है यार, इनिशियलाइज करता है गिट रिपोजिटरी, है ना। गिट क्लोन क्या करता है, किसी भी कोड बेस को आपको अपने लोकल कंप्यूटर में है ना क्लोन करता है, मतलब वो सारी फाइल्स एक साथ चाहिए तो गिट क्लोन उसके लिए होता है। गिट रिमोट एड अपस्ट्रीम, ये बेसिकली इसलिए होता है, कोई वेब सर्वर है, ठीक है, सर्वर पे सारी फाइल्स हैं, अब मुझे है ना अपने कंप्यूटर को बताना है कि हमारा जो मतलब जो फाइल्स हैं कहाँ से ले रहा हूँ मैं, ओरिजिन क्या है, तो ये उसके लिए होता है गिट रिमोट एट अपस्ट्रीम। बेसिकली ओरिजिन और फिर यहाँ उसकी यूआरएल डालते हैं कि हाँ यहाँ ये हमारी मास्टर रिपोजिटरी है, इससे हम सारी फाइल्स यूज कर रहे हैं। गिट पुल अपस्ट्रीम किस लिए होता है, गिट पुल बेसिकली अगर मान लो वो जो ओरिजिनल रिपोजिटरी है जो वेब सर्वर पर है उसमें अगर कुछ चेंजेस करे गए, लेकिन आपके पास वो लोकल में तो चेंजेस होंगे नहीं, तो हम ये कमांड यूज करते हैं गिट पुल अपस्ट्रीम मास्टर, है ना। गेट ऐड किस लिए होता है, हमारे लोकल से गेट की साइड पे है ना फाइल्स ऐड करने के लिए होता है। गेट ऐड डॉट ए, ये बेसिकली स्मॉल केस में होना चाहिए था वैसे, है ना, ये सारी फाइल्स ऐड कर देगा। गेट कमिट क्या होता है यार, कमिट मतलब देखो एक प्रोसेस रहता है, गेट इनिट हो गया, हमने अपने लोकल में एक मतलब बता दिया फोल्डर को, ठीक है ये हमारा सारा ट्रैक करेगी वर्जन कंट्रोल सिस्टम गेट इनिट, है ना। उसके बाद हमने गेट ऐड करा फाइल, एक मतलब स्टेज है जैसे, है ना, वी आर इन अ फंक्शन, so a cameraman told us to get us on the stage, तो get at basically tells us all the family members to stand on the stage, है ना। फिर जो get commit है, the cameraman like analogy it is like cameraman says to smile, so we are associating a message, मैंने मतलब ये वाली फाइल्स ऐड करी है, ठीक है, आई हैव एडेड दिस फाइल, मतलब एक मैसेज हम उसके साथ एसोसिएट करते हैं, है ना। गेट पुल बेसिकली वही काम करता है, जो ओरिजिन रिपोजिटरी रहती है मास्टर रिपोजिटरी रहती है तो लोकल में हमारे चेंजेस आ जाएं उसके लिए। गेट लॉग, गेट लॉग बेसिकली ये लॉग क्या है, मतलब आपका जितने भी कमिट्स मारे हैं या जो भी है, मतलब एक तरीके से वर्जन का, मैंने ये कमिट करा ये ऐड करा तो ये सारी डिटेल्स गेट लॉग में होता है। गेट फैच इज ऑल्सो सेम लाइक गेट पुल, है ना। ठीक है, ब्रांच और मर्जिंग पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते। देखो ब्रांच का मैंने यही बोला है कि जैसे मैंने कोई सा सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने उसको सारे कोड गिटहब पे डाल दिया, अब मुझे सॉफ्टवेयर में उसका कुछ पार्ट चेंज करना, उस पर टेस्ट करना है, तो बेसिकली मैं उसी पॉइंट से एक ब्रांच बनाऊंगा, नई ब्रांच बनाऊंगा और उसमें चेंजेस करूंगा। तो गिट ब्रांच इज बेसिकली यूज टू क्रिएट अ न्यू ब्रांच, इसके आगे हम फिर एक न्यू ब्रांच का नाम लेते हैं कि हाँ अब मैं इस ब्रांच पे काम करूंगा। ठीक है, गिट चेकआउट किस लिए यूज होता है, ब्रांचेस के बीच में स्विच करने के लिए यूज होता है। लाइक इफ आई एम ऑन मेन ब्रांच एंड आई हैव टू स्विच ऑन मास्टर ब्रांच, आई वुड से गिट चेकआउट मास्टर, है ना। गिट मर्ज किस लिए होता है, जैसे मान लो ए ब्रांच पे हूं मैं और बी ब्रांच मेरी आगे है ना, अब मैं चाहता हूँ ए और बी बिल्कुल सेम, मतलब सेम हो जाए दोनों ब्रांचेस, जिसका कोड जो बी में है वो ए में भी आ जाए, तो मैं क्या यूज करूंगा, गिट मर्ज यूज करूंगा, है ना। मैंने गिट मर्ज करा तो दोनों ब्रांचेस सेम हो गई। गिट रीबेस इज ऑल्सो सेम लाइक मर्जिंग द ब्रांच, है ना। और वैसे स्लाइड आगे आनी चाहिए थी, पता नहीं पीछे रह गई। गिट बेसिकली वही बता दिया मैंने आपको, वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर है। गिटहब एक्चुअली एक वेब एप्लीकेशन है जो सारी रिपोजिटरीज को होस्ट करता है ना। गिटहब माइक्रोसॉफ्ट ओन्ड है ना। और बाकी इतना कोई इसमें डिटेल में अपने को जानना चाहिए, जो मेन चीज है वो मेरे हिसाब से सीख लें तो बेटर है ना। तो मैं एक काम करूं, सेशन थोड़ा स्टार्ट कर दूं, है ना चिराग, Yes, yes, yes. है ना। ठीक है, तो यार मैं बेसिक बेसिक कमांड्स आपको बता दे रहा, एक बार गिटहब की साइट पे ले जाके। यार देखो सबसे पहले ना ये जो गिटहब की जो स्लाइड है मतलब सॉरी साइट है, उस पे हाँ, अपने को, हाँ okay. बोल। हाँ, I was just saying that इनको GitHub से एक बार कंफर्टेबल करा दूं कि कैसे इसको नेविगेट करते हैं। हाँ वही एक बार वही मैं बोल दे रहा हूँ।
तो यार देखो, जैसे मैंने बता दिया, जीसॉक का सारा कोड आपको है ना ये गिटहब पे मिलेगा। तो मैंने क्या करा था, जैसे एक ये पीडीसी है मेरा वाला, तो इसको मैंने फॉर्क करा था। फॉर्किंग क्या होती है, मतलब उस सारे कोड बेस को एक हम अपनी ब्रांच में अपने पास अपना होस्टिंग कर रहे हैं। तो ये फॉर्क पे क्लिक करना रहता है, मैं पहले से ही फॉर्क कर चुका हूँ इसको। तो ये उनकी ओरिजिनल साइट थी जिसपे उनका सारा कोड बेस था, है ना। मैंने फॉर्क करा, तो वो सारा एक मेरे खुद का रिमोट रिपोजिटरी बन गई, वो भी गिटहब पे। अभी लोकली नहीं हुआ है ये कुछ, तो ये सब मेरे क्या है, ये रिमोट पे बन गया था, है ना। सेकेंड थिंग जो अपने को करनी पड़ती है क्या रहती है, हमें अब अपने लोकल कंप्यूटर में चाहिए, ऑफलाइन भी हमें चाहिए, मतलब उस पर नहीं है। तो ये कोड में आप देखोगे एक ये लिंक दी रहती है, इसको आप है ना कॉपी करोगे, है ना। फिर मैं जैसे एक बार बता दे रहा, जैसे मैं इस फोल्डर में हूँ। अरे हाँ, एक और चीज तो भूल ही गया। या किसी को अगर गिट का मतलब, जैसे उबंटू वाले तो है ना यार क्या है, उस पे तो डायरेक्ट है ना सारे कमांड्स चल जाएंगे। विंडोज वालों के लिए बता दे रहा कि किस पे है ना कमांड चलानी है, तो गिट डाउनलोड कर लेना। एक बार मैं बता दे रहा, ये रहा डाउनलोड गिट एससीएम। तो इसका जो विंडोज का जो बैश गिट बैश आता है ना, उस पे सारे कमांड्स चल जाएंगे विंडोज यूजर्स के लिए, है ना। तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना। और फिर मैं एक बार बता दे रहा, ठीक है। अब मैं इस फोल्डर में हूँ, मैं चाहता हूँ यार इधर है ना वो मेरी फाइल आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, इधर ये जब इंस्टॉल कर लोगे तो एक ऑप्शन आएगा गिट बैश का। ये एक सर्विस है जिसमें आपके सारे कमांड्स चल जाएंगे, कमांड लाइन की तरह आप समझ सकते हैं, है ना। तो यार ये देखो गिट बैश हो गया है। अब मैंने ना सबसे पहले ना उसका वो रिमोट रिपोजिटरी की लिंक कॉपी कर ली है। ये रिमोट रिपोजिटरी क्या है, ये ओरिजिन है, मतलब यही मास्टर ब्रांच है मेरे लिए। तो मैंने इसको कॉपी करा है। मैं क्या कमांड यूज करूंगा, गिट क्लोन करूंगा सबसे पहले, है ना। तो अभी क्या है, ये जो सारी फाइल्स हैं मेरे लोकल में डाउनलोड हो जाएंगी। यार ये टाइम ले रहा है क्योंकि बड़ी फाइल थी, ये चीज तो मैं भूल ही गया था। कोई नहीं, एक मैं तो दूसरी चीज डिस्कस कर ले रहा। हाँ मतलब इनको तो ये ये बता जो दो कि सारी कैसे फाइल्स हैं, करना है। हाँ हाँ वही। तो एक सेकेंड, हाँ हो गई। तो आप इस फोल्डर पे एक बार जाके चेक करो कि फॉर्किंग का मतलब क्या होता है और गिट क्लोन का मतलब क्या होता है। तो मैंने इसको करा, 4.83 MB है। तो जो भी सारी जो फाइल्स थी उसकी, वो मेरे लोकल्स में अवेलेबल है ना। हाँ, एक और चीज और इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन के जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स रहते हैं ना, वो सोर्स फोल्डर के अंदर रहते हैं। मतलब जो मेन कोड जो बैकएंड में चल रहा है ना, वो सोर्स फोल्डर के अंदर रहता है, ठीक है। तो सोर्स फोल्डर के अंदर ये बहुत सारी फाइल्स हैं, इसको चेक करना पड़ता है, ठीक है। ये सोर्स फोल्डर रहता है, एग्जाम्पल्स रहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन दी रहती है, और बाकी सारी फाइल नेसेसरी नहीं रहती अपने लिए। तो ये एक मतलब टॉपिक था कि यार मतलब बहुत बड़ा कोड बेस है, फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको एक डॉक्यूमेंटेशन उसकी रीड करनी पड़ेगी, है ना, जो शायद readme.md में ही मिल जाएगी पहले। या फिर आप सोर्स फोल्डर में जाके है ना उसकी धीरे धीरे उसका कोड समझने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। तो यार मैंने गिट क्लोन कर लिया है। हाँ, कुछ लिनक्स की कमांड्स, लिनक्स आना चाहिए क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट के पैकेजेस रहते हैं जो विंडोज इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करते। तो जैसे कि एलएस है, एलएस बेसिकली क्या करता है, इट लिस्ट ऑल द फाइल्स और फोल्डर्स विच आर प्रेजेंट इन योर करंट डायरेक्टरी। तो जैसे कि मेरे इसमें एक्सटेंशन वाली डायरेक्टरी मतलब फोल्डर है सेम, तो फाइल्स है, माई रेपो है और ये पीडीसी, ठीक है। अब मेरे को फोल्डर स्विच करना है, तो मैं क्या कमांड यूज करूंगा, cd चेंज डायरेक्टरी पीडीसी। तो ये देखो अब मैं मतलब है ना इस डायरेक्टरी में आ गया हूँ, है ना। फिर एलएस करूंगा, ये सारे जो है मेरे इसके वो आ चुके हैं कि क्या क्या है इसके अंदर फोल्डर, है ना। मैंने ये बता ही दिया है, सारी जो भी फाइल्स रहती हैं जो मेन रहती हैं वो सोर्स फोल्डर के अंदर रहती हैं, ये रही। और उसमें भी मेन है ना, ये आपको अलग से दिख जाएगा। जैसे मेरे एंड में सर्वर में थी, सर्वर के अंदर सारी फाइल्स थी। तो मुझे बेसिकली शुरुआत यहीं से करनी थी कि सर्वर की सारी फाइल्स को समझना कि वो बेसिकली काम कैसे कर रहा है। तो इसमें मैंने हेल्प ली डॉक्यूमेंटेशन की, और डायरेक्ट है ना उस पर कर गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें रहती हैं एक साथ समझना इट्स इम्पॉसिबल, तो वही, है ना। और cd डॉट डॉट से क्या है, आप मतलब वापस जा सकते हो। मेरे को अभी सोर्स फोल्डर पे हूँ, मुझे पीडीसी पे वापस जाना है, तो मैं ये वापस स्विच हो गया, है ना। ये अपन एक काम करते हैं, कुछ नॉर्मल से कमांड यूज कर लेते हैं, बस यही काम आते हैं। जैसे कि है ना मैं एक चेंज कर रहा हूँ, मैं अपने लोकल में चेंज कर रहा हूँ बेसिकली इसमें, है ना। हाँ, जैसे ठीक है। और एडिटर कोई सा भी यूज कर सकते हो, मैं GNU करता हूँ कभी कभी, और विम यूज करते हैं बहुत सारे डेवलपर्स, और VS कोड तो करते ही हो। तो यार नैनो में कुछ नहीं, ये इनबिल्ट रहता है। मैंने इस फाइल को खोला, है ना। जैसे फाइल है, इसमें पूरा दे रखा है। अब मैं इसमें एक बार ट्राई करता हूँ, कुछ चेंज करने में हटा दूंगा। मैंने बोला दिस इज माय चेंज,
ये सब अभी मैं अपने लोकली कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, ठीक है, एग्जिट करा। अब मैं गिट स्टेटस, ये जो कमांड है ये किस लिए है बेसिकली, ये आपको बताएगी कि मैं अभी लोकली मेरी कौन सी ब्रांच है, स्टेबल ब्रांच है ना। और मैंने क्या चेंज करा है, एक readme.md फाइल को चेंज करा है ना। तो मुझे क्या करना है, इस फाइल को ऐड करना है, मतलब चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट, मतलब कोई फैमिली अभी वो स्टेज पे खड़ी ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, गिट ऐड करूंगा, सबसे पहले उसको स्टेज पे लाऊंगा। देखो डॉट से क्या है, जो भी तुम सारे बहुत सारी फाइल्स में चेंजेस करोगे तो सारी फाइल्स ऐड हो जाएंगी। और अगर तुम्हें ऐसे सिंगल करनी है तो मैं डायरेक्ट ऐसे उसका नाम लिख सकता हूँ readme.md, ठीक है, तो वो हो जाएगी। फिर से एक और बार गिट स्टेटस देखोगे आप, तो वो बोलेगा ये सब स्टेज पे हैं, अब एक उनको मैसेज उसके साथ जो एसोसिएट करना है वो करो। तो या मैसेज एसोसिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली ये यूज करते हैं गेट कमिट डैश एम, ठीक है। अब मैसेज कैसा होना चाहिए कि मैंने क्या करा है, अपडेटेड रीडमी फाइल, ठीक है, ये मैंने मैसेज एसोसिएट कर दिया, वो आपको बोलेगा ठीक है ये हमने कर दिया है मैसेज भी। अभी लेकिन ये सब लोकल रिपोजिटरी में हो रहा है, मतलब मेरे लोकल पीसी में हो रहा है। जो गिटहब की वेबसाइट है जहां मेरा जिस फोल्डर से मैंने फॉर्क करा था उस पर कुछ चेंजेस नहीं है। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे अपन, ये करेंगे यार, गिट पुश कमांड करते हैं, ठीक है। अपने को किधर करना है, ओरिजिन। ओरिजिन इज द वर्ड विच वी यूज फॉर द रिमोट रिपोजिटरी, मतलब कहाँ से मैंने फॉर्क करा है ना। अब किस ब्रांच से करना है, मैं कौन सी ब्रांच पे हूँ, स्टेबल ब्रांच पे, गिट पुश ओरिजिन स्टेबल, ठीक है। तो यार देखो ये एक हमने है ना क्या है, ये पुश कर दिया है। तो आप जैसे रिमोट रिपोजिटरी जो भी है मेरी, कहाँ गई, ये रही, मैं इसको रीलोड करूंगा तो वो इसकी जो readme.md फाइल होगी ना, दिस इज माय चेंज, ये इस पे शो करने लगेगा। तो ऐसे हम लोकल से रिमोट में हम ऐसे अपना जो कमिट्स हैं वो पुश कर सकते हैं, है ना। और एक और चीज है, हाँ वो है गिट ब्रांच। ये किस लिए यूज करते हैं भाई, कि मतलब कोई दूसरा भी यूज कर रहा हो तो अगर पहले पता होना चाहिए कि हम कौन सी ब्रांच पे हैं, तो ये कमांड यूज करेंगे तो ये बोलेगा हाँ मैं स्टेबल ब्रांच पे हूँ, है ना। और मैं अभी इसमें क्या है, नई ब्रांच ज्यादा बना नहीं रहा क्योंकि ये मेरा मेन प्रोजेक्ट है। एक लोकली वैसे मैंने बनाया था, उस पर अपन एक काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। शायद ये ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए, हाँ ये रहा माई रेपो। तो ये देखो फोल्डर स्विच करने के लिए मैं cd डॉट डॉट यूज करूंगा, है ना। ये फोल्डर स्विच हो गया। अब मैंने ना ls क्या है, फाइल्स मेरी रिपो कर दी, तो मुझे अब इस फोल्डर में जाना है, मैं क्या यूज करूंगा, चेंज डायरेक्टरी माई रेपो। ये भी एक मतलब गिटअप पे मैंने ही बनाया था, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। इसके अंदर ये है, हाँ एक और चीज, गिट इग्नोर क्या करता है, गिट का एक ये फंक्शन है, इसके अंदर आप जो भी फाइल या फोल्डर का नाम लिखोगे ना वो गिटहब पे अपलोड नहीं होगा। तो अगर देखना चाहो तो मैं बता दे रहा, गिट इग्नोर, जैसे मैंने इसके अंदर एक सेकंड हैशटैग वैसे यूज, बिना हैशटैग के भी काम करेगा, जैसे ऑब्जेक्ट्स लिख रखा है ना। इस फाइल को सेव करा मैंने, एग्जिट करा, तो बेसिकली इस फोल्डर के अंदर मेरी ये 4 हैं फाइल्स, ये 2 फाइल्स हैं और 2 फोल्डर हैं। तो जो ऑब्जेक्ट्स वाला फोल्डर है वो अपलोड नहीं होगा, अगर मैं गिट पुश भी यूज करूंगा ना ये नहीं होगा, ये लोकल ही रहेगा। तो मतलब बेसिकली गिटहब विल इग्नोर दिस फोल्डर और फाइल, है ना। और एक बार जैसे मैं बता दे रहा, जैसे सोल्डर है, इस सोर्स फोल्डर के अंदर जैसे कोई सी भी फाइल है ना। अब मुझे है ना जैसे इसके अंदर कोई सा भी है ना, हाँ इसमें ब्रांच बना के दिखा दे रहा, ब्रांच बनानी थी मेरे को। तो अभी मैं कौन सी ब्रांच पे हूँ इसकी, देखो 2 ब्रांचेस, एक ब्रांच पहले से ही मैंने बना रखी है, मास्टर ब्रांच वाज माय ओरिजिनल ब्रांच। और अभी मैं ये देखो माइक ब्रांच पे आ गया हूँ, जैसे ही मैंने मतलब ये अलग गिटहब प्रोजेक्ट है ना। तो मैं माइक ब्रांच पे हूँ। अब मेरे को क्या है, दूसरी ब्रांच पे स्विच करना है जो मेरे खुद की है, तो मैं क्या यूज करूंगा, गिट चेकआउट मास्टर, है ना। अब मैं मास्टर ब्रांच पे आ चुका हूँ, है ना। अब पुल रिक्वेस्ट पे आ जाते हैं यार, बेसिकली कंट्रीब्यूट कैसे करें हम, मतलब किसी दूसरे को, है ना। विशाल, हाँ I just wanted to ask that are you having GitHub desktop? यस, तो उसकी हेल्प से इनको एक बार वो आप बता सकते हैं कि कैसे अपन स्विच करते, तो उसमें ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा GitHub desktop की हेल्प से, यार if गिटहब possible. डेस्कटॉप वैसे पता है बहुत कम यूज करते हैं लोग। Okay. मतलब जैसे मतलब अपनी ब्रांच चेंज हो रही है, जिस ब्रांच पे अपन करंटली रिसाइड कर रहे हैं, if हाँ, it's not useful then you can just skip it. मतलब यूजफुल तो है ही ये। गिटहब ने क्या है, शायद अभी अभी शायद 2020 या 2019 में ये लॉन्च हुआ था, लेकिन सब लोग क्या है कमांड लाइन यूज करते हैं, उससे क्या है बहुत सारे हेल्पफुल हो जाती है डेवलपमेंट में। मैं एक बार हाँ फिर भी बता दे रहा कि यार पुल रिक्वेस्ट का कैसे, कमांड लाइन के थ्रू बता दे रहा है ना। हाँ हाँ श्योर. एक बार मैं बता दे रहा, एक सेकेंड होल्ड करना यार, एक सेकंड ब्रेक देना बस। हाँ ओके ओके.
टिल देन अगर किसी को भी यार कोई डाउट है तो पूछ लो, है ना, चैट में लिख दो। इन द at the end of the session Vishal sir will answer all these questions. Okay, so I'm repeating again. If anyone is having any doubt, they can just list it down in the chat section and he will answer after this. हाँ, तो यार मैं कंटिन्यू करता हूँ, थोड़ा यार वो ब्रेक हो गया था। जैसे ये रही, एक माई रेपो है ये, है ना। तो इस बेसिकली रेपोजिटरी में कितनी ब्रांचेज हैं? 2 ब्रांचेज हैं, एक मास्टर ब्रांच और एक माइक ब्रांच। तो मास्टर ब्रांच वाज माय ओरिजिनल ब्रांच, जिसे मैं कह सकता हूँ ओरिजिन ब्रांच है, और माइक ब्रांच मैंने एक अलग से ब्रांच बनाई थी, है ना। तो अभी मैं कौन सी मास्टर ब्रांच पे हूँ, मैं मास्टर ब्रांच पे चेकआउट कर गया, है ना। एक बार है ना, मैं माइक पे पुल रिक्वेस्ट करना बता दे रहा कि कैसे करते हैं। तो यार किसी भी रिपोजिटरी को फॉर्क करते हो तो 2 ब्रांचेस जरूर बना लेना, ये बहुत हेल्पफुल रहता है। मतलब खुद की 2 ब्रांच जैसे मैंने बनाई थी, एक मास्टर ब्रांच तो पहले से ही थी, और माइक ब्रांच मैंने गिट ब्रांच माइक यूज करके बनाई थी, है ना। तो वो उसी पॉइंट से शुरू हो जाएगी जहां से आपने मतलब जो फाइल्स अभी इनिशियली लोकल कंप्यूटर में आपके अवेलेबल है। तो मैं एक बार ये बता दे रहा, माइक पे कुछ चेंजेस करके पुल रिक्वेस्ट कैसे करते हैं। अब मैं माइक ब्रांच पे आ गया हूँ। एक बार अब मैं कोई सा भी कुछ भी चेंज कर दे रहा, जैसे कोई सी सी फाइल है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दे रहा, हेलो वर्ल्ड बाय वर्ल्ड, ओके। जैसे कोई सी सी फाइल है, मैंने इस पे चेंज करा, है ना। अब मैं गिट स्टेटस देखूंगा तो ये बोलेगा आपको कि देखो आपने गिट इग्नोर, मैंने हाँ गिट इग्नोर से भी कोई सा भी छोटा चेंज भी होगा वो आपको दिखा देगा, ठीक है। मैंने बोला सारी फाइल्स ऐड करनी है मुझे, गिट ऐड डॉट कर दूंगा, है ना। सब लोग स्टेज पे आ गए, अब मेरे को उनको एक मैसेज एसोसिएट करना है कि मैंने उनके साथ मतलब क्या करा है। तो मैं लिखूंगा ठीक है चेंज्ड फाइल, है ना। अब ये सब है ना, मुझे क्या करना है, रिमोट रिपोजिटरी में जो मेरी माइक वाली ब्रांच है उस पे पुश करूंगा, गिट पुश, एक सेकेंड, हाँ, ओरिजिन माइक। तो देखो ओरिजिन मतलब ये जो माइक ब्रांच का जो ओरिजिन है वो सारे वहां चेंजेस दिख जाएंगे। एक बार मैं बता दे रहा, ये देखो अभी तो मैं मास्टर ब्रांच पे हूँ, मैं माइक पे जाऊंगा, ये दूसरी ब्रांच है, ये आ जाएगा जो भी मैंने चेंजेस करे हैं। मैंने सोर्स फोल्डर के अंदर जो फाइल थी उसको चेंजेस करे थे, है ना। अब पुल रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आप लोग तो है ना मतलब वही किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्क करके करोगे, तो डायरेक्ट तो है ना ऐसे करोगे नहीं। तो सबसे पहले खुद की ब्रांच पे है ना मतलब करना, और फिर उसके बाद जो मतलब या तो 2 तरह की पुल रिक्वेस्ट होती हैं, ब्रांचेस के बीच में पुल रिक्वेस्ट, या अलग अलग रिपोजिटरीज, मतलब वो कोई और दूसरा ओनर है और मैं दूसरा हूँ, तो वो वाली पुल रिक्वेस्ट। तो जो दूसरी वाली सबसे पहले वही करनी पड़ती है। बेसिकली अभी तो मैं ही ओनर हूँ इसमें, क्योंकि दोनों ब्रांचेस मेरी है। तो मैं माइक ब्रांच पे हूँ, मैं इस पे करूंगा कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, है ना। तो पुल रिक्वेस्ट में बेसिकली हमें ये डिफाइन करना पड़ता है हमने क्या कोड चेंज करा है, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिपोजिटरी, जो रिमोट रिपोजिटरी है, ठीक है। तो मैं इसमें मतलब वही कुछ भी लिख दूंगा, आई हैव कंट्रीब्यूटेड या जो भी, है ना। तो पुल रिक्वेस्ट का मतलब ही ये रहता है कि हमने ये कंट्रीब्यूशन करा है, ये चेंज करा है, आप इसको एक बार रिव्यू करो। तो ये मैंने क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करा, है ना। तो बेसिकली एक ये पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब ये जो मर्ज पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन अभी मेरे पास आ रहा है, अगर आप किसी दूसरी ब्रांच पे जो जिसकी ओनरशिप आपके पास नहीं है तो ये नहीं आएगा। तो ये वही मेंटेनर जो है, जो मेंटर है जो भी, वही इसे मर्ज करेगा। वो पहले आपकी फाइल को देखेगा कि यार क्या चेंजेस करे हैं फाइल में, है ना। अगर उसे मर्ज करनी होगी तो वो अपने कोड में कैसे मर्ज करेगा, मर्ज, ठीक है। तो यार पीआर ऐसे करते हैं, है ना, पुल रिक्वेस्ट। और कुछ और कमांड्स हैं गिटहब के जो मैं सोच रहा हूँ बता दूं, है ना। जैसे कि हाँ, जैसे मैं मास्टर ब्रांच में हूँ और मुझे है ना इस पे मैंने डायरेक्ट वेबसाइट पे ही चेंज कर दिया, मतलब किसी बंदे ने सामने से ओरिजिनल रिपोजिटरी या उसमें चेंज कर दिया, तो मैं उसे लोकली अपने कैसे लाऊं, मतलब पहले से ही वो मेरे पास साइट है, बट मुझे लोकली भी वो चेंज लाना है, चेंज हियर ओनली, ठीक है। तो यार ये भी एक कमिट होता है, जो भी चीज आप गिटहब की वेबसाइट पे करोगे ना वो सारा इधर आ जाएगा, अपडेटेड। ये कमिट कर दिया तो ये मैंने यहाँ चेंज कर दी, लेकिन यही चीज मेरे लोकल में नहीं आएगी, ठीक है। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, मास्टर ब्रांच में चला जाता हूँ, है ना। तो इसकी जो रीडमी वाली फाइल है माई रेपो की, उसमें ये चेंज अभी नहीं आएगा,
है ना। उस चेंज को लाने के लिए क्या करूंगा मैं, एक कमांड होती है गिट पुल, कहाँ से करनी है, ओरिजिन, है ना, किस ब्रांच में करनी है, मास्टर। तो ये देखो, ये जो उस रिमोट रिपोजिटरी में जो भी चेंजेस करे हैं मैंने, एक बार मैं खोल के दिखा दे रहा, चेंज हियर ओनली। तो जो रिमोट रिपोजिटरी पे चेंजेस करे थे, इससे आप मतलब फ्लो मतलब मेंटेन रहता है, मतलब वहां तो चेंजेस हो ही रहे रहते हैं, बहुत सारे डेवलपर्स अलग अलग। तो ये कमांड इसलिए यूज होता है कि हम भी मतलब वही उसी जगह से स्टार्ट करें, एरर फ्री कोड से। ठीक है, गिट पुल ओरिजिन मास्टर। मैंने मतलब बेसिकली तो मेन सारी यही कमांड्स है ना। पुल रिक्वेस्ट का बता ही दिया है। सो आई गेस सेशन का तो यही था, क्योंकि मेन यही कमांड्स है ना। यार तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक काम करते हैं Q&A सेशन शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स रहेंगे आई गेस, मुझे पता है ना। सो Okay, so if you guys are having any doubts, you can just unmute yourself and ask, right? First of all, thank you यार, मतलब अच्छी जो रिस्पॉन्स मिला यार इस मीट को, इस सेशन को। ठीक है, तो जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं। Anyone having any doubt? विशाल सर ने वैसे सब कुछ अच्छे से समझा दिया, डाउट हुआ नहीं। ठीक है, सो वी विल वेट फॉर 2 more minutes अगर किसी को टाइप करना। ओके, हाँ ओके। यार ये बता दो यार, वैसे जीसॉक ने पता है इस साल स्टाइपेंड कम कर दिया है ड्यू टू कोविड, है ना। मतलब 2020 तक है ना $3000 था स्टाइपेंड, इस साल उन्होंने उसका हाफ कर दिया है, दैट इज $1500। और शायद मेरे हिसाब से वर्क ड्यूरेशन भी कम हो गई है। क्या? वर्क ड्यूरेशन भी कम हो गई है। हाँ, वो इसी कारण करा है, मतलब पहले शायद है ना 3 months और 4 months का होता था, अब 2 months का होता है बेसिकली। तो उसमें शायद ऐसा हो गया कि क्योंकि वर्क ड्यूरेशन कम कर दी पर काम तो उतना ही है, तो जने बढ़ा दिए, मतलब ज्यादा लोगों के सिलेक्शन होता है, आई गेस। हाँ ये भी है वैसे। अब मतलब सिलेक्शन तो उतने ही है यार, मतलब ज्यादा क्या, पिछले साल मतलब वही 1 to 2 के हुए थे, इस साल भी उतने हुए हैं, मतलब वही है, टाइम कम कर दिया और उन्होंने स्टाइपेंड भी कम कर दिया। स्टाइपेंड कम कर दिया। बढ़िया है। और किसी को कोई डाउट? स्टाइपेंड वाला तो हो गया क्लियर। दूसरी बीट में भी अगर किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। मोटिवेशन यार, मोटिवेशन क्या है, मैं मतलब जब मैं ये शुरू करा था डेवलपमेंट का काम, तो यही मोटिवेशन था कि यार अब शुरू कर दिया है तो होना ही है, तो पूरी मतलब लगा दो मेहनत, और क्या। जितने अच्छे से, सही बताऊं तो मुझे मजा आया था मतलब डेवलपमेंट का काम करते हुए, तो वही मेरा मोटिवेशन बन गया कि मतलब यार तुम्हें भी मजा आएगा, मतलब कोई सी नई चीज एक्सप्लोर कर रहे हो और टेक्निकली तुम इंजीनियर हो, तो वही ये तो होके करके रहेंगे इस टाइप से। एकेडमिक्स, ये थोड़ा सही क्वेश्चन है। उस टाइम मुझे याद है शायद है ना, आई गेस क्विजेस चल रहे थे हम लोग के फरवरी मार्च के टाइम, मार्च में टर्म शुरू हो जाता, तो जैसे ही, तो उसके बाद तो मैंने फुल टाइम देना शुरू कर दिया था। और उसके पहले यार एकेडमिक्स को भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, लेकिन ये अभी ऑनलाइन में थोड़ा एकेडमिक्स थोड़ा मतलब मैनेज कर पा रहे हैं, ऑफलाइन में शायद ना हो पाए, ऑनलाइन में इट्स मैनेजेबल। हाउ डिड यू स्टार्ट योर, यार डेवलपर करियर तो एज सच मतलब यही है कि मैंने ओपन सोर्स की जर्नी, सबसे पहले क्या है, वही पहले ओपन सोर्स खुद जाना था, गिटहब का मैंने खुद सीखा था, है ना। यूट्यूब सबसे मैंने खुद है ना हेल्प मतलब यूट्यूब की ली थी। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए, तो बहुत हेल्पफुल थे। और स्टैक ओवरफ्लो जो साइट है, कोई सा भी मेरा डेवलपमेंट का एरर आता था तो मैं उसी पे जाके है ना मतलब है ना ढूंढता था। तो स्टैक ओवरफ्लो पे बहुत अच्छे आंसर्स हैं, वो आपके मतलब है ना सारे एरर्स हटा देंगे। तो मतलब कुछ चीजें हैं, मतलब एक्सप्लोर करो और मतलब वर्क करो, टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा एज अ हॉबी लोगे तो आई गेस मतलब यू वुड बी एंजॉयिंग एंड गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम इट आल्सो। and learn technical computer do it before approval phase to increase chances। yes, मैंने यही बोला है कि प्रपोजल के पहले मतलब जो मेंटर के सामने जो आपकी एक इमेज बनेगी ना, कि बाकी सब स्टूडेंट्स के अलावा,
कि ये बंदा डेडिकेटेड है, ये पहले से ही वर्क कर रहा है, बिना स्टाइपेंड के, बिना किसी चीज के हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, इतना डेडिकेटेड है. So obviously your chances would be more than the other guys who are starting from March and they are just applying in a proposal. मतलब he knows personally that you are doing work, you are active on the community channels. देखो ये चीज सेमेस्टर ब्रेक में ही, ऑब्वियसली सेमेस्टर ब्रेक में ही आप लोग टाइम दे पाओगे, क्योंकि अभी तो मतलब बहुत सारी चीजें रहती हैं यार, कोडिंग भी रहती है ना. तो वही है, सेमेस्टर ब्रेक सबसे अच्छा टाइम रहता है नई स्किल्स को सीखने के लिए, कम समय में बहुत सारी चीजें सीखना. और अभी एकेडमिक के साथ मतलब आपकी जो भी प्री स्किल्स है उसको आगे बढ़ाओ मेरे हिसाब से. तो मतलब मैं भी अभी है ना, क्या कहते हैं, ये 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड का ये कंप्लीट ही कर रहा था, मतलब वो पूरा हुआ नहीं है. तो वही कह सकते हैं, मतलब मैनेज करना पड़ेगा बस वही. फॉर कॉलेज एकेडमिक्स, चिराग डू यू वांट टू आंसर? क्योंकि मतलब एकेडमिक्स में तो यार मतलब कौन सा ये क्वेश्चन? लोग आई गेस कौन सा क्वेश्चन आप बता सकते हो एक बार? लास्ट वाला, ये आई विल जॉइन दिस कॉलेज वाला. Okay, this is for Okay. Karthik sir. ओके ओके. Karthik sir, please answer the last question. मिशाल एक मिनट वो क्वेश्चन खोलोगे तुम्हारा चैट बॉक्स में हाँ था? हाँ एक सेकंड, ये रहा. मैं एक बार वो क्वेश्चन रीड कर देता हूँ. So Okay. I will join college this year. So what should I ideally do now? Not just for GSOC but for college academics also. PS, I don't have any coding knowledge at all. मतलब till now. ओके, तो कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो यार कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिकअप कर लो. तुम्हारे एकेडमिक्स में जैसे सी सिखाया जाएगा, है ना, और उसके साथ साथ तुम सी, पाइथन या जावास्क्रिप्ट, एक कोई जो भी तुम्हें अच्छा लगे उस पर थोड़ा रिसर्च करके पिकअप कर लो, उसको सीखो. और जो भी डोमेन तुम्हें पसंद हो, वेब डेवलपमेंट या फिर डेटा साइंस, उससे रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी सीख लो. बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत तुम्हें बस समझ में आना चाहिए चीज़ें क्या है. और उसके बाद फिर अपना ऑर्गेनाइजेशन ढूंढने लगो, और क्या कहते हैं, ओपन सोर्स कोई कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करना स्टार्ट कर दो. और धीरे धीरे तुम्हें खुद क्लियर होता जाएगा कि क्या करना है, या फिर तुम हम लोगों से कांटेक्ट करके आगे पूछ सकते हो. बट फिलहाल क्योंकि मतलब काफी थोड़ा टाइम लगेगा, ये एकदम से एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में होने वाली चीज नहीं है. तो फिलहाल तो सीखना स्टार्ट कर दो कोई लैंग्वेज, और कोई भी रिलेटेड टेक्नोलॉजी जिसमें भी तुमको इंटरेस्ट हो. बाकी एकेडमिक्स का तो यार तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा. मैंने तो एकेडमिक्स में इतना ज्यादा ध्यान दिया नहीं था, तो अगर तुमको अच्छा सीजीपीए लाना है तो उस हिसाब से तुमको मैनेज करना पड़ेगा एकेडमिक्स को. I hope बहुत अच्छे से समझा दिया है कार्तिक ने. So if you are having any more doubts you can ask. कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया? एक बार you can just scroll the chat section में शायद. Sir, हाँ एक बार. हाँ yes. yeah, sir, there is a question, last question, which is from Yash Saraswat. Like how to explore new technologies, like going to organization and search on which technologies they are working on. देखो मैं जैसे अपने केस का बता दे रहा, जैसे मेरे केस में नई टेक्नोलॉजी थी शेफ, है ना. तो मैंने इसको क्या करा, मैं डायरेक्ट गया, है ना. ये रहे डॉक्यूमेंटेशन, किसी भी सॉफ्टवेयर की या किसी भी टेक्नोलॉजी की डॉक्यूमेंटेशन दी रहती है. यूट्यूब पे वीडियोस थे, लेकिन इसमें मेरे को मतलब वैसे किसी इंडियंस ने तो वीडियो नहीं बनाए थे, बहुत कम ही थे. तो इस पूरी डॉक्यूमेंटेशन को मैंने सिर्फ अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो जो चीजें थी, ये थोड़ा पहले मतलब मैंने इस पे थोड़ा टाइम ज्यादा स्पेंड करा था टेक्नोलॉजी सीखने पे. ठीक है, तो टेक्नोलॉजीज थी, तो मेरा है ना सिर्फ सेफ ऑब्जेक्ट स्टोरेज था और लिब्रेडोस लाइब्रेरी थी. मतलब बहुत सारी चीजें रहती हैं. तो यार मतलब कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा, मैं एक बार बता दे रहा. सेफर डीएम डिप्लॉयमेंट इस साइड है. हाँ तो ये देखो, हाँ तो यार ये पॉइंट वाइज सब दे रखा है. ठीक है, कि कैसे मेरे को मतलब करना है कमांड्स, ये सब अभी तो थ्योरेटिकली सब चलेगा, है ना. लेकिन इसमें आगे है ना जाओगे, जैसे है ना किसी भी सर्विस में, जैसे कोई सी सर्विस है, एनएफएस सर्विस है ना, ये यूज करी थी मैंने थोड़ी. तो ये प्रोटोकॉल कैसे यूज करते हैं, ये कमांड्स कैसे हम है ना इसको अप्लाई करें, सब लिखा रहता है. इसको मैंने बेसिकली मैंने रैंडम ऐप को है ना, जैसे किसी अपन एक्सप्लोर करते हैं ना,
तो ये सारी कमांड्स एक बार खुद मतलब वही टाइप कर करके अगर एरर आ रहा है तो वो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जो मेरे साथ बहुत हुई थी, लेकिन नहीं आएगा क्योंकि जनरली इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से दे रखी है कि ये क्या काम करती है क्या नहीं। ओके सर। सर एक डाउट मेरा था सर, लाइक क्या हमें खुद का भी कोई डॉक्यूमेंटेशन रखना चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी आर लाइक हैविंग अ गिटहब रेपो, देन जो उसकी रीडमी फाइल होती है, क्या हमें उसको भी कहीं ना कहीं हर दिन चेंज करना चाहिए फॉर विद लाइक हर जो भी हम चीज करते हैं? यार बेसिकली ये देखो, कोडिंग वर्ल्ड में जैसे मैं अगर कोई, जैसे तूने मेरे को अपनी है ना रिपोजिटरी भेजी, तो मैं शायद ही सारी फाइल्स को खोल के है ना देखूं कि यार इसने बंदे ने क्या करा है काम। तो जो फर्स्ट और लास्ट इंप्रेशन रहता है ना, वो रीडमी फाइल का ही रहता है जो डिस्प्ले होती है कि ये मेरा जी। प्रोजेक्ट क्या काम रहा है, किस चीज के लिए। तो ये बहुत अच्छा मतलब प्लस पॉइंट है कि अगर अभी से ही मतलब है ना कोई सा भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसकी एक रीडमी फाइल बना रहे हो, तो उसी की लिंक किसी और को भेजोगे तो दैट इज सो मच यूजफुल, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू प्रिडिक्ट व्हाट आर यू डूइंग, so that is so much helpful. Yeah, ओके सर। ओके, थैंक यू। welcome. I guess we also have Apurv. Apurv, can you share 2 minutes of your experience, and if you like to add something? Apurv, are you there? हेलो एवरीवन, थैंक्स मिशाल। वैसे तो मिशाल सर ने सब कवर कर ही दिया है, पर बस एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि देखो जीसॉक में वो जनरली लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूटर्स ढूंढ रहे होते हैं। तो तुम अगर थोड़ा पहले से कंट्रीब्यूट कर रहे हो और तुम और लोगों की मदद भी कर रहे हो साथ में, जैसे मान लो किसी और को डाउट आया तो तुम उनके चैट का जो भी चैनल होगा उस पर या किसी चीज़ पे उनकी भी हेल्प कर रहे हो, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा काउंट करता है। तो मतलब कम्युनिटी में एक्टिव रहना बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है और फिर बाद में काफ़ी मदद करता है जब प्रपोजल की शॉर्टलिस्टिंग हो रही होती है। तो ऐसे तो बस इतना ही है, बाकी तो सब मिशाल ने कर ही दिया था पूरा। Thank you, Uh, Apurv, for attending the session. कुछ और क्वेश्चंस है आई गेस लास्ट। आई एम इन सेकंड ईयर लेफ्ट विद वन मोर सेम, सो हाउ शुड आई स्टार्ट विद डेवलपमेंट स्टफ्स अलोंग विद सीपी? यार देखो वही है, टाइम थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। डेवलपमेंट स्टफ इतना भी हार्ड मत ले लेना कि बहुत ज्यादा ही इम्पॉसिबल हो जाए, है ना। तो वेब डेवलपमेंट और एंड्रॉइड डेवलपमेंट इज इजी क्योंकि उसके रिसोर्सेज पूरे इंटरनेट पे अवेलेबल है ना, मतलब बहुत जल्दी सीख सकते हो, तो एक प्लस पॉइंट है मतलब। लेकिन यही है, इजी काम है। और अगर कोई दूसरी नई चीज सीख रहा है यार, तो थोड़ा यही है, जैसे ये जो शेफ टेक्नोलॉजी है, इसके खुद के भी सेशंस होते हैं, ये खुद एक ऑर्गेनाइजेशन है, रेड हैट के अंदर आती है ना। तो वो खुद है ना मंथली एक है ना इनके सेशंस रहते हैं, वो उसमें खुद है ना वो ट्राई करते हैं कि जो हम न्यू डेवलपर्स हैं उनको बताएं कि हाउ टू यूज अ प्रोडक्ट, या इसमें क्या हम ऑनगोइंग क्या करने वाले हैं। तो मेन ये है, आपको मतलब चीजें पता होनी चाहिए सही टाइम पे कि क्या चल रहा है किसी भी चीज को अगर करो। सर, हाउ टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन कोड बेस एज अ बिगिनर? या ऑर्गेनाइजेशन कोड बेस का मैंने वही बताया था कि रीडमी फाइल दी रहती है, उसको पढ़ना पड़ेगा, है ना। जो टेक्नोलॉजीज है उस मॉडरेट लेवल पे या इजी लेवल पे आनी चाहिए, तभी आप उसको समझ पाओगे, है ना। फिर जो सोर्स फोल्डर रहता है, सोर्स फोल्डर के अंदर सारी जो मेन फाइल्स रहती हैं, क्या कोड काम कर रहा है, वो दी रहती हैं, ठीक है। और एक बार आपने जैसे कम्युनिटी चैनल ज्वाइन कर लिया, जैसे रीडमी फाइल में क्या रहता है, एक बार मैं ये चीज और क्लियर कर दे रहा। जैसे ये कोई सा सॉफ्टवेयर है ना, तो यार देखो पीडीसी है ना, क्या है मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू करा, यूट्यूब पे ढूंढा, और तो और मतलब है ना उन्होंने खुद ने है ना, मैंने मतलब है ना जो कम्युनिटी थी उन्होंने मेरे को खुद स्लाइड्स भेज दी कि यार मतलब तुम्हें समझना है तो इस स्लाइड के थ्रू तुम समझ सकते हो पूरा पीडीसी क्या है। तो वो खुद तुम्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे अगर तुम इतने इंटरेक्टिव दिखोगे। तो ये देखो उन्होंने मतलब पूरी स्लाइड्स भेज दी थी। इससे मतलब ये स्लाइड मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी कि पूरा मतलब उनका कोड बेस समझना। तो यही है, जितना इंटरेक्टिव रहोगे, जितनी चीजें नहीं पता चलेगी, उतना तुम ज्यादा जल्दी कोड बेस को समझ पाओगे। तो ये रीडमी फाइल एक रीड करना, है ना, कम्युनिटी में इंटरेक्शन अच्छा रहे, और बेसिकली सोर्स फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल रहती है। और अगर तुम्हें ऊपर से ओवरव्यू लेना है तो एग्जांपल्स में बेसिकली उस सॉफ्टवेयर को यूज करा रहता है। मतलब कि क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये कुछ क्या है, बीडी कैट्स और हैक्सियो, मतलब फिजिक्स के बड़े बड़े डेटा हैं, उसको इस सॉफ्टवेयर पे लोड कर, हाउ वुड इट वर्क, ठीक है। तो ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं।
जैसे रन ये, लेकिन मेरे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, हर किसी सॉफ्टवेयर का अलग अलग एग्जांपल्स होंगे, तो उस तरीके से मतलब पिच कर सकते हो। और सब व्हाट सीजी सेफ इन LNMIT इफ आई गो टुवर्ड्स ओपन सोर्स। यार देखो, प्लेसमेंट के लिए सब लोग बोलते हैं 7CG इज मतलब सेफ है, लेकिन मैं तो सेफ इसे नहीं कहूंगा। 7.5 को जितना बैरियर है उससे 0.5 ऊपर ही रखो, क्योंकि जो टॉप एलाइड कंपनीज है उनका क्या भरोसा कि वो 8CG रख दें। तो इसलिए यार सीजी मेंटेन करना ये मतलब है। अगर आप एक अलग से ही बहुत अच्छे डेवलपर हो तो कह सकते हैं यार, मतलब वही ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, लेकिन सीजी मेंटेन करना मेरे हिसाब से तो मतलब करना चाहिए। तो 7.5 या 7.5 से ऊपर या 7 के ऊपर। आई गेस आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेरीज। चिराग, राइट चिराग? Yes, you have. So if you're having any more doubts, you can just ask in the feedback or technical query form that we have released. So I will request कि ये फॉर्म में एक बार वापस नीचे एक और बार शेयर कर देता हूँ, ठीक है? तो यार ये सब एटलीस्ट भर देना फॉर्म, राइट, सो दैट वी कैन नो दैट व्हाट वाज योर रिस्पॉन्स, हाउ यू लाइक दिस, ठीक है? So thank you guys for such an amazing response. If you are having any more doubt, मिशाल सर की जो LinkedIn ID है वो हमने उसकी जो फीडबैक फॉर्म है उसके नीचे ही सेंड करिए। तो go connect with them on LinkedIn, ask all your doubts. Also, you can follow all our social media handles. So this was it for today. Thanks for attending. Yes, I would also want to thanks to Chirag, who is the GDSC lead, and all the management team of Y20. मतलब उनके बिना ये इवेंट पॉसिबल नहीं होता। तो cheers to them, उन्होंने मतलब बहुत वर्क करा है पोस्टर मेकिंग एंड प्रमोशंस में। सो गाइस, ग्रेट वर्क, थैंक्स। एंड आई गेस सबने लाइक करा वो सेशन, है ना? सही में मतलब जो GDSC टीम थी, उन्होंने जो वीडियो बनाई, इतनी प्यारी वीडियो, मार्केटिंग टीम ने इतना अच्छा काम किया, जो हमारा स्पीकर था उसने इतना अच्छा सेशन दिया। So I will thank you all and acknowledge you all for such an amazing effort. So this was the first event of GDSC और बहुत अच्छा event हुआ है। So thank you guys, और also a special mention to Karthik and Apoor for attending the session. It was really Yes. great for your presence.